person always will look for the best cost possible or the best discount possible. What they fail to understand is when they're buying something on a cart or from a vegetable guy or a fruit guy versus they're buying in a mall, they never bargain in a mall. डिसीजन मेकिंग में इमोशंस का और लॉजिक का अपना आप में क्या रिश्ता है? 100 में से 99 लोग पता है कैसे सोचते हैं? यहाँ से they use 90% heart, 10% brain. आपकी इक्वेशन मेरे हिसाब से उल्टी होनी चाहिए. 10%, 90%. It says numbers don't lie, only people do. सो ट्रू. सेल्स में और ये जो शब्द है ट्रस्ट, इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है? If I don't trust you, I'll not buy from you. जो भी आप बोलेंगे सच बोलना और जो भी आप बोले कॉन्फिडेंस से बोलना. Because sales more than trust is about C, S and C. सामने वाला बंदा जब आपको ना बजट नहीं बता रहा है और फिर भी आपको उनके लिए कोई प्लान बना के देना है, तो ये वाली एडवाइस आपको फॉलो करनी चाहिए. Absolutely right. और पता है ये मुझे कैसे सीखी मैंने? डिलीवरी हो गई सर्विसेज की. Why should I keep asking for the money? Why should I tell वासु भाई मुझे आगे पेमेंट करना? अरे नहीं करना मुझे पेमेंट, मुझे उसको जाके पार्टी करनी हो. इंडियन क्लाइंट्स क्या करते हैं कि भैया वो पहले बार आपके पास आएंगे एक रिक्वायरमेंट लेके और रिक्वायरमेंट रहेगी वन लाइनर. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वासु आर. आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे हैं मिस्टर तरुण मखीजा जी. तरुण मखीजा जी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स साइकोलॉजी, कंपैरिजन ट्रैप के बारे में. मखीजा जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू भाई. जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सेल के लिए लेके जाते हैं, सबसे पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट जो दिमाग में लोगों के आता है एज ए बायर एंड एज ए सेलर, वो क्या होता है? As a buyer, psychologically, I want to make that sale. I want to make that sale happen because I'll get an incentive, or probably I have been given a target that I want to achieve. And the last thing that as a seller, that I think, is that it might help the other person. That's not my first or primary agenda. Very few salespeople think of the other person as how will this actually help you or the person buying. And as a buyer, I am thinking of multiple aspects: price, quality, trust, brand loyalty, brand advocacy. Is the brand known? Is the brand unknown? And it is said that if the brand is something that you put on your skin or inside your mouth, which is actually something that you eat or something that you have to apply, you will think 10 times before buying it, especially if it's a new brand, right? I'm not quoting any specific brand because we're not sponsored by them. And having said that, I feel the buyer's mindset also changes from geographies to geographies, to tiers of the cities to tiers of the cities. Like Bharat thinks different versus India, and China thinks different versus Japan. So does India, so does Australia, so does USA, Africa, whatever. Whichever country, continent you pick up, every buyer is different. But one commonality that every buyer has, depending on the buyer's income cycle. If the income stream is, let's say, middle class or lower middle class, and an Indian mentality, the person always will look for the best cost possible or the best discount possible. What they fail to understand is when they're buying something on a cart or from a vegetable guy or a fruit guy versus they're buying in a mall, they never bargain in a mall. ट्रू. So the moment the vegetable guy starts putting up stickers on the fruits that this is for this much, you should just stop bargaining. Because if you bargain, the guy who works the hardest, and the guy also agrees because he knows that everybody will bargain. So they are all playing with each other's psychology. When you come to me for buying something, I'll tell you, okay, this is going to cost you ₹1,00,000 or 1 crore or whatever. Because I know that you'll close at about 10% lesser or 5% lesser. Or the other way of selling something would be that as a seller, again, I'm talking now from the buyer's point of view. To the seller's point of view is that two types of people who sell in life. One who can sell, one who cannot. The ones who can, to another bifurcation. Just follow the flow chart with me if you can. A, this is my cost. Take it or leave it. Imagine you're going to an agency for podcasting.
you got 3 quotes. One said, if you buy from me, I'll give you a 20% off. If you take a 6 months, 12 months, I'll give you 30% off. Pay all 100% advance. Second guy tells you, I'll charge you monthly retainer, minimum 6 months contract, XYZ cost. Third guy tells you, this is my cost, take it or leave it. Now, all of these 3 people are charging you similar figures. But the last guy who told you take it or leave it is the most confident on his work. Plus is not desperate. Because as a buyer, you can see when the seller is desperate, and when the seller is desperate, the buyer has an upper hand. You know that this is the last size in the shoe. It's not getting sold. It's costing, let's say, 10,000 rupees. And I'm already giving you a discount of 5. You're like, give it to me in 3. It's the last shoe, you're not able to sell it. It's a weird size, a UK 6. Not a lot of people wear UK 6. So, as a seller, you can never ever show desperation to people. The moment you show desperation to me in a sales conversation or in any conversation of your life, the other person bargaining or buying or conversating will always have the upper hand over you. So, that's like a long answer to your short question. I hope I get 10 out of 10 out of this. You should. Okay. डिसीजन मेकिंग में इमोशंस का और लॉजिक का अपने आप में क्या रिश्ता है? Logic and emotions, right? So, really a very beautiful interpretation जो मैंने सोची है, जो मैंने निकाली है खुद से. 100 में से 99 लोग पता है कैसे सोचते हैं? यहाँ से. They use 90% heart, 10% brain और mind, जो भी आप बोल लो. जबकि इक्वेशन मेरे हिसाब से उल्टी होनी चाहिए. 10%, 90%. The moment you, let's take an example of Virat Kohli. I love him to whatever extent, and I'm so happy that we're recording this in his hometown. And today, when I was, buying some fruits, I asked the guy, Virat Kohli भाई यहीं पे रहते थे क्या साउथ एक्स में आसपास? बोले हाँ सर यहीं रहते थे. मतलब उनमें सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या दिखता है आपको? बोले सर उनकी सोच में पहले में और अब में बहुत फ़र्क है. जब वो यहाँ खेला करते थे, अब वो जब जिस लेवल पर खेलते हैं. तो अगर आप एक बार के लिए उस इंसान का माइंडसेट समझेंगे, अगर वो इंसान सिर्फ दिल से सोचता तो कभी क्रिकेट वापस उठा ही नहीं पाता बल्ला अपना. उनका एक फेस था जब वो थोड़े से सैड हो चुके थे. मैं डी वाला शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मुझे लगता नहीं कि वो इंसान कभी उसमें जा सकते हैं फेज़ में. इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है वो, बिकॉज उस फेज़ में भी वो इंसान रोज़ उठ के वर्कआउट कर रहा था, डाइट फॉलो कर रहा था. मोटिवेशन होना हो, डिसिप्लिन था उनके पास. तो ये यहीं से आता है, यहाँ से नहीं आता. दिल बोलता है यार कि 4 मिठाई और खा लो, कल उठ के बटर नान पेल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? सो माई point over here that I'm trying to make from this entire beautiful story of Virat Kohli and his dedication and his success because of his mindset is only mindset. And I feel that unfortunately a lot of people take decisions from the heart. And not deciding from the heart, you're actually taking a decision which could be good for you, which could be worst for you. आपको आपका बच्चा बोल रहा है पापा मुझे 2 घंटे और YouTube देखना है. Your kid is too young to watch that right now, but let's assume that आपका बच्चा 5 साल का हो चुका है, उसको YouTube आपने दिखाना शुरू किया खुद ने. आपकी गलती है ये, है ना? चूचू टीवी से लेकर बेबी शार्क से लेकर सब आपने दिखाया उसको. खाना नहीं खा रहा था, आपने उसको आदत डाल दी. अब वो बोल रहा है 2 घंटे और देखना है. उसने ऑलरेडी 1 घंटा देख चुका है दिन का. उसकी लिमिट आपने 1 घंटा दी थी. टीवी प्लस यूट्यूब प्लस फ़ोन ख़त्म हो गया. अब इमोशनली सोचेंगे तो आप बोलेंगे ले देख ले बेटा कोई नहीं. और ऐसा बोला जाता है कि ना थोड़े कुछ लोग घरों में ना पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ घरों में मम्मी स्ट्रिक्ट होती है. तो जो कम स्ट्रिक्ट वाला इंसान होगा, जो इमोशनली ज़्यादा सोचता है, उसको मैं जाके बोलूँगा पापा यार प्लीज़ यार आपका ये काम कर दूंगा यार पापा प्लीज़, ब्राइब दे दिया मैंने आपको. आपने बोला ठीक है यार देख ले. आपने बोला देख ले. तो प्रैक्टिकली तो आपने सोचा, अगर मन से सोचा हो तो आप बोलते हैं बच्चे की आँख ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बच्चे आजकल फ़ोन यहाँ से देखते हैं. तो जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कितना किसका इस्तेमाल करना है. मेरे हिसाब से 90% इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, इसका 10% करना होता है. थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूँ लोगों को मैं, क्योंकि हर इंसान दिमाग से शायद सोचने की कोशिश करता है बट फिर दिल जीत जाता है ना.
आपको अभी एक फ़ोन आता है, आपको बोलते हैं कि यार आपकी वाइफ या कोई भी आपको बोलता है कि यार सुनो मुझे ना आपके साथ घूमने चलना है, 2 बजे ही चलना है। यार मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो इंसान को मैंने बुलाया, बॉम्बे से आया है वो, और मेरे लिए ना यार वो रुके हैं एक दिन एक्स्ट्रा, मैं फ़ोन करता हूँ तुमको, शाम को चल सकते हैं क्या, चलेगा? नहीं मुझे अभी जाना है। समझो वाइफ नहीं तो कोई बच्चा जिद कर रहा है, आपका भांजा या कोई भी, यार बेटा समझो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो दिल से आप सोचेंगे तो आपको तो उठ के जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आप सोचेंगे तो यार पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको सामने वाले को भी प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। यू टू चूज टू इग्नोर सम कॉन्वर्सेशंस in life as a whole, in business as a whole, everywhere. Because if you don't do that, then you'll always give in to saying yes. You have to learn to say no. Then the decision that I made was to show up here today was only because of one reason. The reason is very simple. I like talking. You wanted to talk. Like I told you, I absolutely have no एंड गोल की इस पॉडकास्ट से ये निकल के आएगा यार, ये एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। एंड इन बिजनेस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, आई थिंक I have a very beautiful thing that I wrote about a few years back. I'll share that with you. It says, numbers don't lie, only people do. So true. Right? आपने बिजनेस कर लिया 5 साल हो गए, आपको दिख रहा है ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आप कुछ पीछे रह गए। 5 साल में आपका एक प्रोजेक्शन था 100 करोड़ का था, आप 15 करोड़ पे 20 करोड़ पे बैठे हैं, और इसके पहले आपने लाइफ में इतने पैसे साथ में कभी देखे ही नहीं थे। 20 करोड़ है, सही है, अच्छा बड़े चल रहा है यार, सब कुछ मस्त है, सही है। आपको इमोशनली बहुत खुशी हो रही है, क्या नंबर्स भी वो बयां कर रहे हैं? अगर नंबर्स वो बयान नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरी टीम में क्या गलतियाँ हैं, किसको सुधारना है, मुझे सुधारना है खुद में अपनी 4 चीज़ें, वो सुधारूंगा, टीम में सुधारना है वो सुधारूंगा, सेल्स साइकिल सुधारना है वो सुधारूंगा, प्रोसेस सुधारना है वो सुधारूंगा, क्लाइंट सर्विसिंग सुधारनी है वो सुधारूंगा, बिकॉज नंबर्स डोंट लाई, ओनली पीपल डू। सो ट्रू। ट्रस्ट एक बहुत ही ना महंगा शब्द है सेल्स में, और ये जो शब्द है ट्रस्ट, इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है? If I don't trust you, I'll not buy from you. It's very true in an online aspect more than offline. क्या होता है ना, आपको पता है हमारा एक एरिया होता है जहाँ हम रहते हैं, उसके आसपास ना एक सैलून फिक्स होता है, एक वेजिटेबल वाला, फ्रूट वाला, और एक ग्रोसरी वाला, राशन वाला। हमारा 5-6 लोग फिक्स होते हैं। ज्वेलर भी बहुत लोगों का फिक्स ही होता है, भले वो दूर भी हो। आप उसी ज्वेलर से क्यों बाय करते हैं? क्योंकि आपको ट्रस्ट है। वो ज्वेलर आपको चीट करे ना करे, वो उसके ऊपर और आपका रिलेशन बड़ा, 1 ग्राम लें आप, 100 ग्राम सोना लें, कुछ भी लें, आप उससे लेंगे। ट्रस्ट कैसे आया? आपके पापा लेते थे वहाँ से, आपके पापा के पापा वहाँ से लेते थे, या कोई और रिलेशनशिप में जिसने आपने बिल्ड की हो ओवर द ईयर्स। सिमिलरली आप उस हर इंसान से वही सब्जी लेते हैं आज भी, या फ्रूट्स लेते हैं, या उसी सैलून पे जाते हैं, आपको ट्रस्ट है, ये इंसान को पता है कि ऐसी दाढ़ी चाहिए, यहाँ से फेड इतनी होनी चाहिए, ऐसे ऐसी होनी चाहिए, उसको पता है। आप बहुत कम नए लोगों को ट्रस्ट कर पाते हैं उन चीज़ों में जो आप खाते हैं, जो आप खरीदते हैं, कुछ वैल्यूएबल्स लाइक गोल्ड, या फिर जो आप के दिखने में हेल्प करता है। अब ये बात कर लेते हैं अपन ऑनलाइन मॉडल पे जाते हैं। मैं 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग ही कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ। ऑनलाइन ना एक मॉडल होता है AIDA। अब AIDA मॉडल में क्या होता है कि जो अवेयरनेस वाला मॉडल होता है सबसे ऊपर, उसमें ये दिखाते हैं कि एक फ़ोन आ रहा है यहाँ पर, उसको अपन काट देते हैं, ठीक है। अब AID में सबसे ऊपर क्या होता है कि A मतलब अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट डेवलप किया, डिज़ायर में आप रिसर्च कर रहे थे, रिव्यूज़ पढ़ रहे थे, एक्शन ले लिया आपने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, जो कैसे डेवलप करता है एक बायर। अकॉर्डिंग टू salesforce.com, for a stranger to trust a new brand online, or a stranger to trust a online salesperson or an offline salesperson, it takes at least 7 to 8 times that you have to see that ad or talk to that person or believe in what they're selling, or simply it should solve your problem. Now, if
tomorrow हाँ, Amazon tells you I will not take this item back. हाँ, You are in the given time frame of returning the item. हाँ, They said no. Your trust went to zero. हाँ, ऐसी क्या बिल्कुल बात चला है? जाएगा। हाँ, अब मैं कल से यहाँ से लूँगा फ्लिपकार्ट से, हो गया, ख़त्म हो गया. हाँ, एंड आई फील कि आज तक अगर मेरी माँ उसी इंसान से भाजी लेती है तो उसको उस पर ट्रस्ट है कि ये फ्रेश लाता है. हाँ, मैं जेप्टो से ले लेता हूँ यार, सभी जेप्टो कभी खुद जाके ले लेता हूँ. डिपेंड्स ऑन माई कन्वीनियंस एंड माई स्केड्यूल. एंड आई ऑल्सो फील कि जब आप बड़ी बिजनेस डील्स कर रहे होते हैं ना, तो 99% कन्वर्जन ना बोर्ड रूम के बाहर हो चुका होता है. हाँ, बोर्ड रूम में सिर्फ साइन और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सो ट्रू। MOU बनते हैं, सिर्फ हैंडशेक होते हैं. मैंने क्या आपको अपना दोस्त बनाया? मैंने क्या आपके साथ एक प्रोफेशनली अच्छा रिलेशनशिप बना पाया? भले आप फिर 6 महीने में कन्वर्जन करें, साल में करें, 6 दिन में करें, 6 मिनट में करें. एंड आई फील कि आपका पुराना काम जो आपने पहले किया है उससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए. अगर आपने किसी को बताया कि आपने 932 ऐप्स डेवलप करी हैं एप्पल के साथ, लाइफ में इतनी करी हैं, एप्पल में सबसे ज़्यादा करी हैं आपने, मैं बोलूँगा यार इस इंसान को तो आता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो इजीली कर लेगा, कोई शक ही नहीं है उसमें ना. 5-6 ऐप चला के भी देख लूँगा कि स्मूथ चल रही है, UI UX कैसा है. तो आपने वो ओवर द ईयर्स अपने पोर्टफोलियो से ट्रस्ट बिल्ड किया. हर एक स्टूडेंट भी यही करने की कोशिश कर रहा होता है. इसीलिए आप अगर समझेंगे ना एक स्टूडेंट की साइकिल, स्टूडेंट भी अपने आप को, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल देमसेल्व्स टुडे. स्टूडेंट जब एक इंटरव्यू में बैठा होता है, मैं इस पर्सपेक्टिव की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुनेंगे इस पॉडकास्ट को. स्टूडेंट अगर इंटरव्यूअर में बैठा है, इंटरव्यूअर इसको ट्रस्ट कम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, हाँ, तजुर्बा कम है इसके पास. कल को मैं आपको बोलूँ 2 ऑप्शन है आपके पास, बॉलर बुमराह है, हाँ, जसप्रीत बुमराह हमारे द ग्रेट, बैट्समैन 2 है आपके पास, एक आप, दूसरे कोहली. हाँ, कौन अच्छा शॉट मारेगा? ऑफ कोर्स कोहली। आप भी सेम साल के हैं, वो भी सेम हाँ. उम्र के, हम उम्र के ही हैं. सेम, एक्सपीरियंस तो आपको भी सेम है, बट हाँ. आपका जॉनर अलग है, उनका जॉनर अलग है. सो ट्रू। चलो लाइक फॉर लाइक कंपेयर करता हूँ, कोहली और एक और कोई आपका फेवरेट बैट्समैन. द्रविड़। द्रविड़. कौन अच्छा शॉट मारेगा? डिपेंड्स ऑन द शॉट। अगर आप कवर ड्राइव की बात कर रहे हैं तो कोहली से बेटर Very well मारेगा। ब्यूटिफुल. आपने बोला डिपेंड्स ऑन द शॉट, हाँ, इसलिए डिपेंड्स ऑन व्हाट द अदर पर्सन वांट्स टू हियर एज अ सेल्स पर्सन. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. हाँ, व्हेन यू आर गेटिंग इंटरव्यूड, यू आर द सेल्स पर्सन. हाँ, उसको वो बताओ जो उसको सुनना है और जो आपको सच में आता है. हाँ, नंबर 2, अगर आप बड़ी डील कर रहे हैं तो प्लीज़ हवा में बातें मत करो, ट्रस्ट बताओ. हाँ. सर अगर मैंने ये 6 महीने में हाँ, आपको मैंने प्रॉमिस किया सर 100K लीड्स, हाँ, अगर सर मैं 90% गया तो आई विल टेक फुल पेमेंट. हाँ, 110K पे गया तो आई विल टेक अ बोनस. 50K पे आया तो सर आई विल टेक अ 50% हिट. ये होता है ट्रस्ट विच इज बैक्ड बाय कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस. थर्ड, इंटरव्यू हो गया, एक मीटिंग हो गई प्रपोजल वाली. थर्ड होता है ये छोटे मोटे सेल्स नहीं होते जो सबसे बड़े होते हैं. हाँ, बंदा आता है, मैंने खुद से ग्राउंड लेवल पे सेल्स करी है एक कंपनी के लिए. हम नए प्रोडक्ट्स लेके गए थे, हमारे पास कोई ब्रांडिंग नहीं थी, ना कोई मार्केटिंग थी. 3 साल पहले की बात होगी. हम ना पूरे बॉम्बे के अलग अलग एरियाज़ में देख रहे थे. हाँ, तो आपको एक बात सिखाता हूँ मैं, जो मॉडर्न ट्रेड समझते होंगे ना आप, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, वहाँ पर ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसको कौन सी ब्रांड हो आप. हाँ, सर मेरा मार्जिन 30 से 35% रहेगा. मैं सर 40 तो मेरा प्रॉफिट ही है, यहाँ पे लाने का खर्चा, ख़राब होने का खर्चा, उसका क्या करूँगा मैं? रिटर्न भी आएगा ना मेरे पास. नहीं. कुछ स्टोर्स में जो थोड़े और पॉपुलर है वहाँ पर लिस्टिंग फीस लगती है. हाँ, डीमार्ट लेता है। वो तो वहाँ तो पहुँचना ही बहुत अलग बात है. हाँ, उसके अलावा जो जिनके 6 स्टोर है सिर्फ बॉम्बे में, वो लिस्टिंग फीस लेंगे प्लस 30% पर प्रोडक्ट. तो जब मैं जाके वो सेल कर रहा था उनको ना, मैं जाके जब उनको ये सेल कर रहा था तो मैं यही सेल कर रहा था कि मेरा मखाना अच्छा है, मेरा ट्रेल मिक्स बहुत बढ़िया है, कुछ अलग है इसमें. उनको अलग से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. एवरीबडी केयर्स अबाउट एज अ पर्सन व्हाट्स इन इट फॉर मी, correct. unfortunately. And I'll tell you one more aspect of the same thing. जब मैं उनको दिखा रहा था तो उनको पसंद आया. बोले सर कस्टमर शायद खरीदेगा नहीं, पैकेजिंग ऐसी है, काले काले पाउचे हैं आपके. सर आपके कंप्यूटर देखो कितने बढ़िया ऐड चलाते हैं.
उनने सेक्टर को ले रखा है. So a lot of factors get involved when a store owner is also buying and keeping a product on the shelf. Because वो कब कमाएगा जब ये प्रोडक्ट खिसकेगा. सेम चीज़ जेप्टो अप्लाई करता है, सेम चीज़ इंस्टामार्ट अप्लाई करता है. मैं उसी ब्रांड को अंदर लेके आऊँगा जो ये प्रोडक्ट को खिसकाएगा. क्योंकि मैं तब अर्न करूँगा तब ये खिसकेगा ना भाई मेरे शेल्फ से. करेक्ट. इसकी कोई 5 साल तो शेल्फ लाइफ है नहीं. खाने की आइटम, पेरिशेबल आइटम है. सो तीनों सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बिल्ड कर रहा हूँ. ट्रस्ट माई ब्रांड, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई प्रपोजल. एंड वो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने काम, अपनी केस स्टडीज़ के बिना बिल्ड नहीं कर सकता. अगर मेरे पास वो सब बातें हैं तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ. अगर नहीं है किसी के पास, कोई पहली बार कुछ बेचने जा रहा है, फर्स्ट टाइम सेल्स में बहुत डिफिकल्ट होती है. हाउ टू सेल मी दिस पेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट पीपल हैव टॉट अस इन टर्म्स ऑफ सेल्स. उसमें बोलता है कि यार मुझे एक ऑटोग्राफ चाहिए आपका. आप बोलोगे पेन नहीं है, बेच दूंगा आपको, या कुछ और तरीके से बेच दूंगा. अगर आप पहली बार वो सेल करने जा रहे हैं, भले वो पेन हो या फिर आइसक्रीम हो या फिर एक बहुत बड़ी कंपनी से मीटिंग हो, एक चीज़ अपने साथ में सीना तान के चलना और ठोक के बोलना, जो भी आप बोलेंगे सच बोलना, और जो भी आप बोलें कॉन्फिडेंस से बोलना. बिकॉज सेल्स मोर देन ट्रस्ट इज़ अबाउट CSC. What is this formula? I created this formula for myself and for everybody I teach sales. कोई भी सेल्स पर्सन ना 3 चीज़ें कर रहा होता है. Convincing the customer to buy with a story that they are trying to sell, backed by confidence. उसके अलावा सेल्स में कुछ और होता ही नहीं है. मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सर ये है एयरटेल का राउटर सर. सर 600 रुपये महीना, सर 10 Mbps की स्पीड है, मज़ा आ जाएगा सर आपको. सर कोई दिक्कत है, मैं खड़ा हूँ सर आपके साथ. सर मेरा नाम है तरुण मखीजा, मेरा नंबर लिख लीजिए आप. सर कोई दिक्कत है, फ़ोन करना, बंदा हाजिर हो जाएगा. मैंने एयरटेल नहीं बेचा, मैंने अपने आप को बेचा आपको. सो ट्रू. और मैं आपसे इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि मैं तो ये रोज़ करता हूँ, बट मैंने तो पहला कस्टमर क्लोज कर रहा हूँ. मैं तो कस्टमर को थोड़ा ना पता है, उसको थोड़ी पता है कि मैं पहली बार आया हूँ आपके पास. पता है वो डोर टू डोर आते थे पहले लोग, सर ये हमारे लिक्विड्स हैं, सोप है सर, इंसाइक्लोपीडिया है सर, सर आपके घर में अच्छी 5 लगेगी पैसा सर, बनाता था ऐसे टेबल पे सर अच्छी लगेगी सर, वो लोग गेस्ट वेस्ट आएंगे सर, इंसाइक्लोपीडिया. आधी से जनता ने खोल के देखी ही नहीं वो बुक क्या है, बस दिख रही अच्छी है, वो काफ़ी टेबल बुक लग रही है, पर वो बेच के ज़रूर गया आपको. और आपको पता है उसको हर बुक पे इंसेंटिव मिलता है ना. बिल्कुल. तो लॉजिक सिर्फ इतना है कि अगर हमें कुछ सेल करना है तो हम CSC के थ्रू कुछ भी सेल कर सकते हैं. सेल्स मैंने एक बात नोट करी कि जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो सेल्स मैन ना एक प्रोडक्ट की ना एक स्कार्सिटी इफेक्ट में डाल देता है उसको कि भैया या तो आप ले लो वरना ये प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला है. ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है दिस स्कार्सिटी इफेक्ट एक बायर के डिसीजन मेकिंग के सिनेरियो को? आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. हम इस रूम में 100 लोग हैं, ठीक है, एक बोतल पानी है. ऑनलाइन भी जितनी भी जगह आपने देख लिया, एक ही बोतल पानी है. पूरे आपके 10 किलोमीटर इर्द गिर्द एक बोतल पानी है. 100 में से कुछ लोगों को तो प्यास लग रही होगी. अच्छे लोग होंगे तो शेयर करके पी लेंगे थोड़ा थोड़ा. अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो हो जाएगा ना मंकी वाली कहानी कि ऊपर एक बनाना लटका है, मंकी लेडर एक्सपेरिमेंट है ना. तो सब पे पहले पानी फेंक देते हैं वो लोग, फिर एक एक मंकी चेंज करते हैं. उसको लगता है कि पानी फेंक देंगे तो हर मंकी उसको लेके नीचे कर देता है. सो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेडिशन ने बीट कर दिया किसको, लॉजिक को. तो वापस से आते हैं अपन स्कैरसिटी पे. एक बोतल है, 100 लोग हैं, तो मंकी बन जाएंगे या फिर बांट के पी लेंगे. क्या लगता है आपको, मंकी बनेंगे बांट के पिएंगे? मंकी बनेंगे. ठीक, दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स अनफॉर्चुनेटली. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन्स थ्योरी, है ना. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको बोलूं जो आपने टी शर्ट पहनी है ये भी एक ही बची है, लास्ट 1 piece लेफ्ट इन स्टॉक, ऑर्डर नाउ और यू मे गेट इट आफ्टर 3 months, बिकॉज हमारा रीस्टॉक तभी करेंगे हम. सेम डिज़ाइन का. आप बोलेंगे यार इमीडिएट ऑर्डर करना पड़ेगा. आपको ज़रूरत भी नहीं थी इस टी शर्ट की, मैंने बेच दी आपको टेक्निक से. फोमो. दैट्स व्हाट सोशल मीडिया एड्स आर ऑल अबाउट. सिमिलरली जब सप्लाई और डिमांड का फॉर्मूला होता है ना, डिमांड 100 लोगों को पानी की बोतल की थी, सप्लाई एक ही था. आपकी अगर वो बोतल होती ना, आप उसको लाख में बेच देते, लोग खरीद लेते, क्योंकि
तब पानी 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक पानी नहीं था ना, बड़ा कर देते हैं, पूरी दिल्ली में पानी खत्म हो गया, इकलौती बोतल है आपके पास, करोड़ों में बेच दो। ऐसे ही हुआ ना जब बेड्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, बिल्कुल कोई भी भाव में बेच रहे थे लोग, तो सप्लाई और डिमांड हमेशा चलता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बोलेंगे कि सेल एंड्स एट मिडनाइट ओनली फॉर 24 आवर्स, स्कैरसिटी हो गई ना, टाइम कम कर दिया मैंने, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, प्रोवाइडेड प्रोडक्ट अच्छा हो। मैं वो सब ना अज्यूम करके चल रहा हूँ, ब्रांडिंग है आपके पास, प्रोडक्ट अच्छा है, वापस ब्रांडिंग है आपके पास, प्रोडक्ट आपका अच्छा है, और आपने मार्केटिंग भी अच्छी करी है, आपकी एड्स भी अच्छी है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ सारी चीज़ें ना। और इन सब के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आपको मालूम पड़ जाए कब ये करना है, वहाँ पर आप जीत गए, एज अ सेल्स पर्सन या फिर एज अ ब्रांड या फिर एज अ कंपनी। आपको पता है कि यार IPL आने वाला है, ठीक है, आपको श्योरिटी है कि जर्सीज की सेल बढ़ने ही वाली है। आप क्या करते हैं, आपका रोज का टारगेट है 1000 जर्सीज बेचना एज अ लोकल स्टोर्स इन दिल्ली। आपने ऑनलाइन भी सेल करते हैं, आप स्विगी मिनीज पे कर देते हैं आप। अब हर रोज 1000 की जगह 400-500 बेचने के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक डाल देते हैं। प्लीज़ नोटिफाई में आता है ऐसा आजकल ऐप्स पे, है ना, कि जब ये वापस रीस्टॉक हो जाए। जब रीस्टॉक होती है तो आप यार बोलते हैं आप ले लेना, और मैं रीस्टॉक ना उसको बहुत जल्दी कर देता हूँ, मुझे पता है मेरे पास है, और मैं आउट ऑफ स्टॉक उन्हीं चीज़ों को कर रहा हूँ जो शायद नहीं बिक रही हैं और बहुत ज़्यादा बिक रही है। आपको क्या पता कौन सी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, मैं बना रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। ये ब्लेज़र मैंने 1 लाख बेच दिए, ब्लू वाले 2 लाख बेच दिए, ब्लैक वाले 3 लाख बेच दिए, आपको मैंने तीनों आउट ऑफ स्टॉक दिखा दिए, आप अपनी पसंद से ले लेंगे। तो मैं आपके साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के साथ सिर्फ खेल रहा होता हूँ ऑन एन एड, मैं वही कर रहा हूँ सिर्फ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास ये टी शर्ट नहीं है, आपके पास विराट कोहली की जर्सी नहीं है, आपके पास धोनी की जर्सी नहीं है, या फिर आपके पास हरमनप्रीत कौर की जर्सी नहीं है, आप पीछे हो रहे हैं, आप फटाफट ले लें। आप अभी लेंगे तो हम आपको ना इनग्रेविंग करके आपका नाम फ्री में लिख के दे देंगे, या 200-300 रुपये वाला फैन कोड देता है ये, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम अगेन। तो मुझे पता है कि मुझे क्या बेचना है, राइट, तो मैं उस पर स्कैसिटी डाल दूंगा। कुछ नहीं बिक रहा तो उस पर डाल दूंगा, ये पौधा नहीं बिक रहा इस पर डाल दूंगा, मुझे निकलवाना है ना। हमने ऐसी सेम चीज़ करी थी एक ब्रांड के साथ। मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। एक फैशन लेबल था, 2019 की बात है ये। हमने उनको सजेस्ट किया एक कैंपेन करते हैं। क्या कैंपेन करेंगे? इंस्टाग्राम स्टोरी एड कैंपेन। तब तक इंस्टाग्राम स्टोरी ना बहुत एड्स बहुत बड़ी बात थी कि यार इंस्टाग्राम पे स्टोरी एड्स आ गई हैं, बढ़िया हो गया है। रीच भी बहुत बढ़िया थी उस समय इंस्टाग्राम स्टोरी एड्स की, अभी भी अच्छी है। शी वॉज एप्रीहेंसिव टू पुट द प्राइस ऑफ द ड्रेस ऑन द पोस्ट। मैंने बोला मैम हम प्राइस लिखेंगे ₹50,000 / ₹25, 20, 30 तब डिस्काउंट आप दे रहे हैं। नीचे साइजेस अवेलेबल S, M, L, XL डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर। एक टी शर्ट खरीदना एक लहंगा खरीदने से बहुत अलग होती है, बिल्कुल, या फिर एक 1 पीस खरीदने से बहुत अलग होती है, या फिर एक ड्रेस खरीदने से अलग होती है। आप और मैं बहुत अलग टाइप से बाय करते हैं चीज़ें, एक वुमेन बहुत अलग टाइप से बाय करती है, बिकॉज हर वुमेन का एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। शायद उसको वो ड्रेस आए या ना आए, और अब मैं सेल्स के आइटम बेच रहा हूँ, शायद मैं रिटर्न भी ना कर पाऊँ। मैं पैन इंडिया सेल कर रहा था, हमने लिया हर ऐड पे हमने 36 ऐड बनाई ऐसी। कैसी? 36 ड्रेस, मॉडल भी नहीं है किसी ड्रेस में ना, सिर्फ वो उस पर लगा दिया मैनिक्विन पे हमने। क्लाइंट ने बोला 0 बजट टू शूट। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, पुराना शूट दे दो, ये ले लो। ये 36 ड्रेस पता है कौन सी हैं जो 1 साल से नहीं बिक रही हैं, डेड स्टॉक है उनका, रीस्टॉक करना है उनको नई कलेक्शन से। हमने हर स्टोरी पे सिर्फ 1000 रुपये का ऐड चलाया था। 1000 रुपये 2 दिन 3 दिन के अंदर खर्च हो जाते थे इंस्टाग्राम पे, और DM पे इंक्वायरी आएगी। फिर आप इंक्वायरी के बाद आप कैसे कैटर करेंगे उसको? हाय मैम, दिस इज़ माई बॉडी टाइप, क्या मुझे सूट करेगा, क्या मैं पहन पाऊंगी ये? फिर आप कन्वर्जन कर लेते हैं, आप जो बात कर रहा है उसके ऊपर है। बट इसके पहले का साइकोलॉजी समझते हैं अपन। ऐड आपने देखी, आपने ना अपने वाइफ को एक ड्रेस गिफ्ट करनी थी, आपने बोला यार मेरा बजट ना 25,000 है यार। आपने 7 ऐड देखी, 7 में से 4 में प्राइस नहीं था,
आपने क्लिक किया, प्राइस देखा, आप डिसअपॉइंट होकर बाहर आ गए। 5वीं ऐड में आपने प्राइस देखा, प्राइस नहीं देखा, पर प्राइस फिर वेबसाइट पे जाके सूट हो गया। 6ठी और 7वीं ऐड में हमारी आपने प्राइस भी देख लिया, डिस्काउंट भी देख लिया, साइज भी देख लिया, आपने बोला बढ़िया यार, बायर के मैंने सारे सॉल्यूशंस वहीं दे दिए। तो जब उसने इंक्वायर किया तो मेरे लिए क्वालिफाइड लीड हो गया ऑटोमेटिकली, ना कि रैंडम मेरे पैसे वेस्ट करे उसने क्लिक करके। क्योंकि अगर मैं नहीं लिखता तो आपने 5 ऐड के पैसे वेस्ट करे ना, हैव टू पे मेटा समथिंग। करेक्ट। और आप मानेंगे नहीं, हमने 36 में से 35 ड्रेस सेल कर दी थी विद इन अ मंथ। वो बहुत खुश थी। हर ऐड पे 1000 रुपये लगे भी नहीं थे, क्योंकि कुछ 500 तक में बिक गई तो हमने पॉज कर दी। क्यों पैसे वेस्ट करना क्लाइंट का ना। हमने टोटल 20,000 के कैंपेन में ना लगभग उतने लगे थे। हमारी मैनेजमेंट फीस वो सब नहीं गिन रहा हूँ, क्रिएटिव कॉस्ट नहीं गिन रहा हूँ, एड्स कॉस्ट बता रहा हूँ आपको। हमने गारमेंट्स सेल किए वर्थ 5.5 से 6 लाख। डिस्काउंट के बाद समझो 3.5 लाख के पड़ गए होंगे। उनको तो बहुत फायदा हुआ ना, उनके लिए तो जीरो था उसमें, डेड स्टॉक था। एंड ऑल्टरेशन जीरो, वी विल नॉट बी एबल टू ऑल्टर बिकॉज इट्स अ सेल्स आइटम, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अदरवाइज वो ऑल्टर भी करा के देती हैं। पहली बार जब आप बाटा गए थे, याद है आपको स्टोरी? बाटा, हाँ खैर आप अंदर जाओ पता भी नहीं चलता है, स्कूल के जूते लेने पता भी नहीं चलता है कि भैया कोई आपसे बात भी नहीं करता है। भैया ये वाला, जब हम लोग खुद पहले से सिलेक्ट कर लो, फिर उनसे बोलो, फिर उसमें भैया ये वाला तो है ही नहीं साइज, एंड देन नोबडी स्कूल के जूते होंगे ना, फिर लोग आपसे बात। चलो आप अभी आजकल अच्छे हो गए वो लोग, दे कम एंड हेल्प यू आल्सो, काफी अच्छा हो गया है ब्रांड। पहले भी अच्छा ही था। स्कूल के जूते मैंने बहुत पहने वहाँ के। तो ना मेरे कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस बहुत उल्टा था, जैसा आपको लगा ना लुई वुइटन में जाके। सो इंडियंस को ना दे लुक डाउन अपॉन देम, ऑफ कोर्स, कि सिर्फ देखने आए, ये लोग लेंगे नहीं। एंड इफ यू नोटिस ना, हम लोग पता नहीं क्यों इतने लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर फैंस हैं एज इंडियंस, आई डोंट नो व्हाई। स्पेशली हम तो दिल्ली में, गुड़गांव में बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ तो आपको पता है कि इंसान की जेब में शायद कुछ ना और बाहर मर्सिडीज लेके घूम रहा हो EMI पे। आप इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे, ऐसे होंगे लोग ना, कुछ आपके दूर के लोग कोई होंगे। बहुत हो जाते हैं। एक दोस्त हैं जो गए मॉल में एक दिन, वो 3-4 लाख की टी-शर्टें ले आए 3। मैंने बोला यार ये क्या बाइंग कैपेसिटी है? ठीक है, ये क्या बाइंग पैटर्न है? मैं घर से कैजुअल, जैसे आप लोग, मैं तो कुछ एक जूता लेने गया था, वो चलो 2-3 लाख का होगा, मैं 5 लाख की शॉपिंग कराया, पता नहीं क्यों मोबाइल कवर भी ले लिया मैंने। आपको रिलेशनशिप बना के अपसेल पे अपसेल मारा गया, क्योंकि अगर इंसान इजीली कंफर्टेबल एक शू खरीद लिया उसने, बिना कुछ सोचे, बिना संकोच करे, बिना कुछ कन्वर्जन करे उनके सामने, यार ये इतना पड़ रहा है INR में, हर इंडियन यही करता है ना, आपने देखा ये फॉरेन जाके, मुझे बहुत बिल्कुल बकवास लगती है वो चीज़। मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली, एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ मैं अपने आप को और आपको भी। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने या फिर बिजनेस ट्रिप पे, आप एक बजट बना के जाएं, वो पूरा खत्म करके आ जाए। बचे तो बढ़िया है, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरी बात है आपको सुननी तो सुन लीजिए, हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं जो फाइनेंस के बात कर रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर हमने दे दिया। मेरा एक और लॉजिक है, हम लोग गए थे एक जगह पे लास्ट ईयर 10-15 लोग, सब ना बैठ के कन्वर्जन कर रहे हैं, ये इतना। मैंने जो भी कैश था वो कैश था, जो फॉरेक्स कार्ड था फॉरेक्स कार्ड, अच्छा इतने की ये आइसक्रीम ये लीजिए। मैं उसी करेंसी में सोचता हूँ जहाँ पे होता हूँ। मैं क्यों ऐसा सोचूं until and unless like you said कि बहुत हाई वैल्यू परचेज हो गई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, चल ठीक है 1,000-2,000, आपने बोला 8-9 हज़ार नहीं भाई, ये वासु ये दिरहम है। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर ना चीज़ें बेचनी नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रांड बिक चुका है 100 साल तक, जितने भी साल से चल रहा है। दूसरा, वहाँ पर ना हर चीज़ बहुत दूर दूर पड़ी होती है, इफ यू नोटिस, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन वन आइटम। सो ट्रू। थर्ड, दे आर सुप्रीमली एक्सपीरियंस लग्जरी ब्रांड सेल्स पर्सन, मैनेजर्स जो बोलना है बोलना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे विल मेक यू फील लाइक यू आर इन देयर शोरूम with some batil dates, some tea, like you said, 7 types, 3 types of coffee and all that, you know, Turkish coffee, coffee. And like you said, maybe the agenda was not to buy, but they'll make you feel that कोई बात नहीं सर, आप बैठिए, आइए, खाना नहीं सॉरी, चाय कॉफ़ी पीजिए, पानी पीजिए. So what I'm trying to explain to you is that you will still remember how you got treated, or in other words that I told before, how did the brand or an individual there make you feel. So true. तो जैसा आपने वो बताया ना कि not everybody is your customer. So है ना, तो हम लोग जैसे हमारे ना चार्टर इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो
अब नॉर्मली तो भैया 99% ट्रैवलर्स ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिल्ली टू मुंबई अगर आपको उसमें बिजनेस क्लास में जाना है तो भैया आप 50-60 हज़ार रुपये की टिकट बुक करके चले जाओगे. Right. वाई वुड यू वांट टू स्पेंड 20 लाख रुपीज जस्ट दिल्ली मुंबई आने जाने के लिए और एक प्राइवेट जेट में, राइट? तो हमारे पास वैसे बहुत सारी लीड्स वगैरह हमारे पास भी आती हैं. सो नॉर्मली एक स्ट्रेंजर से आप एक लीड में कन्वर्ट हुए, लीड के बाद MQL में मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड के बाद आप SQL वाले फनल में पहुंचे, सेल्स क्वालिफाइड लीड बनी, वहाँ से पीपल गॉट स्टार्टेड कनेक्टिंग टू यू, देन आप एक प्रॉस्पेक्ट बने, प्रॉस्पेक्ट से जाके आप एक कस्टमर बन गए. ये फनलिंग मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी टाइप की सेल करने जा रहे हो, इवन इन द रिलेशनशिप इन द लाइफ, आप ना हमेशा ना ये वाली फनलिंग ना जरूर तैयार करके रखो. Okay. स्ट्रेंजर से कब कोई इंसान लीड में बनेगा ये सोच सकता हूँ, ये मेरा दोस्त बन सकता है कि नहीं बन सकता. देन मार्केटिंग में क्या करते हैं, आप डिफरेंट टाइप का कंटेंट पुश करते हो कस्टमर को, करेक्ट? ऐसे ही आप डिफरेंट सिनेरियोज अपने थॉट प्रोसेस अपने फ्रेंड्स के साथ ना शेयर करते हो, राइट? क्या वो आपके थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन कर रहे हैं? राइट. वो मार्केटिंग क्वालिफाइड हुए कि नहीं हुए, थॉट प्रोसेस ही कर रहे हैं, पर क्या वो अच्छा दोस्त बनने के लायक है एज ए पर्सन? क्या वो SQL में जाएगा? अगर SQL में चला गया, अच्छी बात है, कोई बहुत अच्छा इंसान आपको बन सकता है. क्या आप दोनों का विजन ऑफ द लाइफ वो अलाइंड है? विजन ऑफ ए रिलेशनशिप वो अलाइंड? देखो कलर तो रेनबो में भी 7 होते हैं ना, पर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं. आपको ग्रीन कलर पसंद है, मेरे को मान के चलो रेड पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है. आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी कि जो भैया हम तो तीनों जने मिल के ना रेनबो बना सकें, मतलब तीनों कलर चाहिए. अब मैं रेड वाला हूँ तो रेड वाले को क्यों अपना फ्रेंड वाले सर्कल में, बिकॉज मेरी वो रिक्वायरमेंट है नहीं. बेशक से वो रेड वाला बंदा दूसरा अमेजिंग पर्सन हो, चाहे वो मोदी क्यों ना है फॉर एग्जाम्पल, राइट? पर मेरे को नहीं चाहिए, करेक्ट? तो प्रोस्पेक्ट से कस्टमर कब बन रहा है? तो ऐसी ना मेरा हमेशा ना रिलेशनशिप के मामले में ये वाला मानना है कि भैया देयर इज अ फनल इन माय लाइफ. अगर बंदा इस फनल के बाद ना कस्टमर बनेगा तो ही मेरे ना उस वाले इनर वाले सर्कल में आके ना एंट्री करेगा, वरना फनल तो है ही उधर. तो सेम गोज विद द सेल्स. जो मेरे को लगता है कि आप ना स्ट्रेंजर से कब कस्टमर बना रहे हो, जैसे आपने उस वाले केस में बताया कि भैया मेरे को बजट पता होना चाहिए, मेरे को जोनर पता होना चाहिए, जियोग्राफी पता होना चाहिए, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, करेक्ट, एंड व्हाई. अगर वो सब कुछ मेरे पास फाइनल है तो मुझे पता है कि जब बंदा आएगा ना मेरे पास, एक प्रोस्पेक्ट आएगा ना, तो वो कौन सी वाली स्टेज में एंट्री कर रहा है, MQL में कर रहा है, SQL में कर रहा है, प्रोस्पेक्ट में कर रहा है कि कस्टमर वाले में कर रहा है. ये डिफाइन कर देता है ऑफ कोर्स आपको कितना जल्दी कन्वर्जन होने वाला है. करेक्ट. या फिर आपको उसको लेना भी, लाइक यू सेड, उसको हाया ना बोलना आपको मालूम होना चाहिए. करेक्ट. आपकी टीम ने से हमने बिग माउथ के टाइम पे ना, हमारी एजेंसी थी 7 साल हमने चलाई, आपकी टीम ने 6 महीने लीड पे काम कर लिया, प्रपोजल पे, मीटिंग हो गई, सब हो गई. उसके बाद तो बजट पूछेंगे नहीं. एक उसको अंदाजन तो पता होगा ना आपको, कि आपको बोलेगा मार्केटिंग हेड या CMO, तरुण भाई देखो पर मंथ अपना ना कुछ 7-8 लाख रुपए बजट रहेगा, कुछ दिवाली कैंपेन्स में अपन 15-20 लाख भी डालने को तैयार है एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव, तो साल भर का मान लो आप, करोड़ रुपए तो हम लोग कर ही सकते हैं इसमें. एंड टू क्वालिफाई द लीड, अगर सामने वाला नहीं बता रहा ना आपको बजट, तो आप एक काम करें, आप जाके उस कंपनी के बारे में पढ़ें, उनका रेवेन्यू क्या है. 500 करोड़ रेवेन्यू है, 10% तो मार्केटिंग में स्पेंड करता होगा, 10% मार्केटिंग में से कम 50% तो डिजिटल पे खर्चा करता होगा. डिजिटल में से आप समझो 3 सर्विस देते हैं, तो कम से कम 50% का, ठीक है, 15-20% तो आपको मिल सकता है. क्योंकि हर बड़ी कंपनी का क्रिएटिव, मेन लाइन, डिजिटल एजेंसी अलग अलग होती हैं. तो अगर 500 करोड़ का 50 करोड़ 10% होता है, 25% उसका आधा होता है, उसका अगर मुझे 30% में गिनूं, 15%, 10% गिनता हूँ. ये $1 बिलियन एडवाइस बता दिया आपने ऑन कैमरा भी यहाँ, कि जिन लोगों को ना ये नहीं पता है कि सामने वाला बंदा जब आपको ना बजट नहीं बता रहा है और फिर भी आपको उनके लिए कोई प्लान बना के देना है, तो ये वाली एडवाइस आपको फॉलो करनी चाहिए. एब्सोल्युटली राइट. और पता है ये मुझे कैसे सीखी, मैंने गिर के ही सीखी, क्योंकि मुझे ना मेरे मेंटर ने बोला, मैंने उनसे पूछा यार कि आप लोग के रिटर्नर सारे बड़े बड़े हैं यार, हमारे 30, 40, 60, 80, 90, 1.5 लाख हमारा बेस्ट रिटर्नर था उस समय. मैंने बोला यार आप लोग हमेशा अच्छी ब्रांड से काम करते हैं जो जानी मानी भी होती है, हम भी करते थे, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, पर्पल ब्यूटी, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड से हमने भी काम किया. मैंने बोला आप कैसे करते हैं क्वालिफाई लीड्स? बोले क्या करते हो आप, कैसे करते हो? बोला सर मैं तो ऐसे करता हूँ. बोले नहीं तरुण, जाओ उस कंपनी के बारे में पढ़ो और देखो कि रेवेन्यू ग्रोइंग है कि नहीं. मालूम पड़ा वासु भाई आपने एक ऐसी एंटिटी से शादी कर ली जहाँ पर वो नीचे गिर रही है, तो शायद आपके क्रेडिट साइकिल बढ़ जाए. और एज एन एजेंसी, एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर ना, आपको ऐसा लगता है एज एन एजेंसी एंड एज एन बिजनेस ओनर
आपको ऐसा लगता है कि यार 500 करोड़ तो कमा रही है कंपनी, पहले 600 था, उसके पहले 800 था, आपने देखा ही नहीं। सो ट्रू। आपको प्रोग्रेसिव कंपनी का जाना है ना, या फिर इसको अगर आप उठा सकते हो तो अलग बात है, बट पेमेंट टाइम पे आनी चाहिए, आप वो भी देख लेना। क्योंकि सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि पीओ रेज होने के बाद, क्रेडिट होने के बाद काम शुरू करना चाहिए टेक्निकली। बट इंडिया में लोग क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे दो शब्द आपने सुने होंगे, चलता है यार, चालू कर देते हैं, चलता है ना, अरे सर कर देंगे, हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों मैं अपने खुद के हक के पैसे के लिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूं? इसीलिए मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एजेंसी फाउंडर्स बन चुके हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए। उसमें से बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं आपको, ओनली NRI क्लाइंट्स, नो इंडियन क्लाइंट्स। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ना रूल है ये, वासु भाई, मैं क्यों काम करूँ इंडियन क्लाइंट का जब मुझे इतनी मेहनत करके मिन्नतें करनी पड़ रही मेरे खुद के पैसे के लिए। बिल्कुल यार आपने जब वो जूता खरीदा वहाँ जाके, आपने उसको बोला क्या 1 साल बाद पैसे दूंगा तेरे को? जूता ले बिना जाने देता आपको शोरूम से बाहर? वो उसको सिक्योरिटी गार्ड जाने देता आपको बाहर? नहीं जाने देता। आपको जाने का मन करता? तो जब डिलीवरी हो गई सर्विसेज की, व्हाई शुड आई कीप आस्किंग फॉर द मनी? व्हाई शुड आई टेल वासु भाई मुझे आगे पेमेंट करना? अरे नहीं करना मुझे पेमेंट, मुझे उसको जाके पार्टी करनी हो, मुझे ट्रिप पे जाना हो। अच्छा, ये ना वैसे इंडियन क्लाइंट्स के साथ ना बड़ा ट्रबल है कि ना इंडियन क्लाइंट्स मेरे को लगता है बड़े टफ क्लाइंट्स हैं। इंडियन क्लाइंट्स क्या करते हैं कि भैया वो पहले बार आपके पास आएंगे एक रिक्वायरमेंट लेके, और रिक्वायरमेंट रहेगी वन लाइनर। मेरे पास बहुत आते थे पहले लोग ना, जब हाँ वन लाइनर मेरे पास आते थे, भैया वासु ऊबर लाइक ऐप बनानी है टैक्सी बुकिंग के लिए। मैं बोलता था कितने पैसे लगेंगे? चलो नेक्स्ट सेकंड में ना उनको पूछना था कितने पैसे लगेंगे। फिर मेरा उनसे क्वेश्चन एक ही होता था, आपको पता है ऊबर क्या है? आपने देख ली ऊबर के सारे फीचर्स क्या हैं? हाँ, डेप्थ में स्टडी कर लिया क्या? तो मैंने कहा भैया अनटिल अनलेस यू डू नॉट नो योर प्रोसेस बेटर देन मी। और नॉर्मली क्या होता है इंडियन क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो चाहते हैं कि आप ना उनके ब्याह पे स्टडी और रिसर्च वर्क खुद करो फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद आप उनको कॉस्टिंग बताओ, विच दे विल से नो, करेक्ट, टाइम वेस्ट है ना। और उसके बाद फिर वो कंपैरिजन में जाएंगे कि भैया फलाना है वो तो इतना चार्ज कर रहा है, फलाना डिमकाना चार्ज करता है। टच वुड टिल डेट जब तक मैं डेवलपमेंट में था ना, आई थिंक 2016-17 तक, आई नेवर एवर वेंट टू एनीबडी कि भैया मेरे को काम दे दो। जितने मेरे पास क्लाइंट्स हैं सारे बंदे आते कि भैया, मैं मना करता था कि भैया मेरे पास अब नहीं होगा टाइम आपके लिए ना, इतना ही टाइम दे पाऊंगा मैं, महीने में आपको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो नहीं देगा, आप देख लो, आपको 2 घंटे मेरे से काम कराना तो आप आ जाना। इस बात पे ना एक बहुत चीज़ बताता हूँ मैं आपको जी। आपने देखा होगा ना, बहुत लोग जब ग्राउंड पे ना सचिन को बहुत लोग बुली भी करते थे बीच में, कोहली के साथ भी सेम हुआ, बहुत लोग, बहुत अच्छे लोग ना, उनका ऐसा होता है। और जैसे आपने बोला कि आपको कभी सेल नहीं करना पड़ा, जो कि एक अच्छी बात है। तो आई हैव ओनली वन फंडा एंड फॉर्मूला इन लाइफ, क्योंकि मुझे भी ना, आप उसकी दुआ बोल दो या पापा मम्मी की बोलो या सबकी कंबाइंड बोल दो, जितने भी अच्छे लोग हैं मेरे लाइफ में, स्टूडेंट्स की बोल दो, 99% of the corporates I've worked with, they've always approached us that Tarun, can you or somebody from your team execute this project for us in terms of training or consulting? तो कोहली और सचिन ने ना एक ही चीज़ अपनाई थी लाइफ में, जो धोनी ने भी शायद अपनाई थी कई हद तक, और रोहित शर्मा भी यही करते हैं, लेट योर बैट डू द टॉकिंग। कोहली देखा था आपने, पहले बहुत बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। एग्रेशन सेम है उनके पास, एग्रेशन सेम है, बंदे का एग्रेशन 1% भी कम नहीं हुआ इतने साल में। आप किसी भी और यंगस्टर को उठा के देख लो, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लो और विराट कोहली की पढ़ लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और जब हमारा काम अपने आप बोलता है ना, तो आपको कभी भी लाइफ में सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा। क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको बेचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब आपका काम आगे बढ़ के उस इंसान को आप तक ला रहा है ना, तो आप कुछ तो सही कर रहे हो। और लाने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी गुरु, आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको लिंक्डइन पसंद हो या ना हो, आपको इंस्टाग्राम पसंद हो या ना हो, आपको नेटवर्किंग पसंद हो या ना हो, आपको पॉडकास्ट पसंद हो या ना हो, आपको अवार्ड्स लेना पसंद हो या ना हो, आपको PR आर्टिकल्स पेड हो या अनपेड हो पसंद हो या ना हो। क्योंकि अगर आज की तारीख में आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो
ठीक है, आपके पास फिर वही फनल करते रहना आप कॉल्स लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमारे देश के इतने बड़े एंटरप्रेन्योर निखिल कामत जी ने एक पॉडकास्ट चालू करी जिससे उन्होंने WTF फंड चालू किया, बहुत कुछ चालू कर दिया अब तो उन्होंने ज़रदा को बनाने के बाद चालू किया क्योंकि उनको लेवरेज बहुत है उनके पास अभी, राइट। क्योंकि ऐसे ही नहीं मोदी जी किसी की पॉडकास्ट पे आते हैं, ठीक है। So true. वो बंदे ने इतनी मेहनत करी और क्या बातें करता है वो, मतलब 6 लोग बैठ के साथ में खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और 6 अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई ब्रांडिंग वाला है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। अगर वो खुद अपनी पर्सनल ब्रांड बना रहा है और अगर मिस्टर कुणाल शाह भी बना रहे हैं क्रेडिट से, या फिर आज एक PV सिंधु भी अपनी पर्सनल ब्रांड बना रही है ताकि उसको और काम मिले और एम्बेसडर बन जाए किसी और चीज़ की भी हो, या फिर कोई भी अच्छा नेता, अभिनेता या कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बना रहा है, तो आप क्यों नहीं बना रहे हैं। मैं इतने दोस्तों को बोलता हूँ, भाई तुम 10 साल से काम कर रहे हो डेटा एनालिटिक्स में, तुमने पहले अमेजोन में किया, तुम फिर अब यहाँ कर रहे हो, कोई एडोबी में कर रहा है, कोई HDFC से स्विच होके येस में आया है, कोई पहले बजाज में था। मैंने बोला तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, डेटा साइंटिस्ट का, फाइनेंशियल नॉलेज है, ये कैसे चलता है। भाई यार मुझे अपना काम दिखाना पसंद नहीं है यार, भाई शो ऑफ लगता है मुझे। एंड दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल फॉर देम। एक और प्रॉब्लम है, अगर आपने इस ना थोड़ी इस चीज़ को थोड़ा क्लोजली देखा होगा ना, जितने लॉजिकल या टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग बाग होते हैं वो सेल्स पर्सन अच्छे देखो होते नहीं है। करेक्ट। अब उन लोगों के लिए ना कैमरा पे जाके बोलना या लोगों के सामने वो इमोशंस जाहिर करना ना, वो बड़ा टफ होता है। मेरे साथ भी था। मैं बता रहा, मैं तो कोट टैग वाला बंदा था, तो मेरे को लगता था कि यार बस क्यों ही बोलना है, तेरे पास काम तो आ रहा है, तो बिजी तो है पूरे टाइम पे। इसके लिए ना मेरे पास आपके बहुत बड़ा सोल्यूशन है जो मैंने उन सबको पिच किया, सेम आइडिया। इमेजिन करते हैं तुम 1 साल 2 साल मेहनत करके लिंक्डइन पे कंटेंट बना रहे हो, आज आपके 50-60 हज़ार 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। आपने साल के ना कुछ चुनिंदा कोलैबोरेशन किए जिनसे आपको सच में हमदर्दी है, अच्छे स्टार्टअप्स हैं, अच्छी कंपनीज है, अच्छे कस्टमर्स हैं, सॉरी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब वासु भाई अगर उसमें आपके साल के पोस्ट डालने पे, क्योंकि आपके पास लेवरेज है, आपके पास ऑडियंस है, आपके पास अटेंशन है उनका, साल के अगर आपके 8-10 लाख रुपए छूट रहे हैं, आपके 2 और 3 या 4 और नए जूते आ रहे हैं, या 4 और आपके टिप्स आ रहे हैं, या फिर आप कुछ गिफ्ट कर पा रहे हो, अब आप FD कर दो, गलत क्या है? बिल्कुल भी नहीं गलत। और आपको आपको कैमरा पसंद नहीं है, मैंने उनको सॉल्यूशन दिया, मतलब लिंक्डइन में पोस्ट डाल दो, ब्लॉग्स चालू कर दो। बिल्कुल। लिखना पसंद नहीं है, ऑडियो पॉडकास्ट चालू कर दो, वीडियो मत बनाओ। ऑडियो पसंद नहीं, वीडियो पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, तो फिर क्या पता नहीं क्या करो। फिर 3 फॉर्म ऑफ कंटेंट मुझे जानता हूँ, ऑडियो, वीडियो और रिटन। पर्सनल ब्रांड का ना कितना बड़ा फ़ायदा है। मेरा नाम तो नहीं ले पाऊंगा एक बंदे का, तो आई नो वो बहुत ही ना इंट्रोवर्ट टाइप की पूरी फैमिली थी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द फैमिलीज जो इंडिया में टॉप 10 फैमिलीज में आती है, रिचेस्ट में से आती होगी, एंड उनका एक बच्चा मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट वन टिल डेट। तो क्या हुआ कि फैमिली बहुत बढ़िया काम कर रही थी, बच्चे का एक डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में बड़ा पैशन था, तो उसने वो स्टार्ट किया। अब बिकॉज भैया वो उस वाले लेयर में आ रहे हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत हैं, फंडिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लोग चाहते हैं कि हमसे पैसे ले लो एंड ऑल। 10-15 साल ना बिजनेस काफ़ी डाउन गया उनका। अच्छा। और गंदे वाला डाउन गया, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट। बट उसके बाद ही मेट वन ऑफ माई फ्रेंड, एक मेरी ही पार्टी में, जिसने उसे ना ब्रांडिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग का ना मतलब समझाया। और उस बंदे ने पहले 1.5-2 साल ना तैयारी करी कि अगर मेरे को पर्सनल ब्रांड बनना है तो मुझे XYZ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ABC चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, देन आई कैन बिकम समथिंग। एंड जब से उसने ये सब कुछ रियलाइज़ किया ना, तो उसने अपनी फैमिली का जो सरनेम था ना अपने डॉक्यूमेंट्स में से हटा दिया कि भाई पुटिंग हिम डाउन। हाँ, तो उनको नहीं, उसको नाम ही नहीं चाहिए था, मेरे को अब फैमिली की वजह से फेम नहीं पाना है, खुद से करना है मुझे, जो कुछ करना है खुद की वजह से करना है। और फैमिली से अलग हुआ, एंड इतना मेरे को पता है कि पर्सनल ब्रांड की वजह से वट एवर ही कुड डू, ऑफकोर्स देखो वो फैमिली के नाम पे कुछ ना कुछ तो उसको फंडिंग फलाना ढमकाना वो तो सब मिलता ही रहेगा ऑफकोर्स, बट ही बिकेम सो बिग कि आई नो कि पिछले 1 साल में आई थिंक ही मस्ट हैव गॉन ऑन लंच विद मोदी जी, आई थिंक अराउंड 5-6 टाइम्स। और अभी भी देखो उनको तो पता ही होगा कौन सी फैमिली से आता है वो, बट बिकॉज ऑफ हिज ओनली पर्सनल वर्क ओनली, खुद की ब्रांडिंग की वजह से, खुद के बलबूते के ऊपर,
पर्सनल ब्रांडिंग ने उस इंसान को बताया कि आपके पास ना कितनी बड़ी वैल्यू है। पर्सनल ब्रांडिंग ही तो है। आईपीएल में आता है ना, उस कंपनी का बेटा बैठने आता है ना, क्या दिखाने था he comes to sit. है ना, वो आता है बस वो उससे फेस गोयनका दिखाने also दे, comes, लोगों को everybody बस comes. लोगों को बता रहे हैं कि भैया Everybody हमारे comes. बच्चे ही हैं, Yes. मेरी बीवी ये है, The मेरा next बच्चे। generation you have to show ना यार, हाँ, कौन next तो उनको generation है. कौन आ रहा है, वो अभी वो जाके अपने अनंत अंबानी अपने बर्थडे पे वॉक कर रहा है पूरा, है ना, वो अहमदाबाद से लेके मुंबई या सूरत हाँ जहाँ हाँ भी कर रहा है। something he did, yeah, हाँ, something वो interesting वॉक he कर did, रहा है yeah, कि yeah, जिसमें वो लोगों, उसने रास्ते में क्या किया, जाके एक बार चिकन की शॉप आई तो वहाँ से जाके 100-150 चिकन थे वो सारे फ्री करा दिए, है ना, उनके अच्छा, पैसे for पूरे खरीद everybody. लिए। हाँ, Okay. नहीं खरीद लिए वहाँ से और उनको फ्री कर दिया कि भैया मैं इनको मरने नहीं दूंगा, ठीक है, Oh, जान बचाएंगे मैं, he saved them. He saved them. I'm so glad he did that. Wow. है ना। तो पॉइंट अगेन पर्सनल ब्रांड क्रिएट करिए एज ए PR ह्यूमन पे, बीइंग हु यू PR आर, पे। राइट। तो वो पे ऑफ तो करता ही है ऑफ कोर्स, I agree with you. है ना। And when तो- you have a strong personal brand, na, हाँ, you don't have to sell. करेक्ट, People come to you like दे ट्रस्ट यू नो। एंड वो जो पहली लाइन थी ना कि व्हेन पीपल ट्रस्ट यू you don't have to sell. you don't have to sell, your silence will be also understood. And like you said something very beautiful. अभी आपने एग्जांपल दिया, आपने बोला कि उसने ये सोचा कि उसको XYZ छोड़ना पड़ेगा और ABC अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने बहुत रैंडमली बहुत अच्छा कोड बोल दिया कि when you are basically trying to do something nice in life, right? You have to put aside the things that put you down. XYZ लास्ट में आते हैं ना, तो सबसे बुरी आदत है तो उनको छोड़ दो, सबसे नई वाली जो अपनाओ ABC वाली, तो शायद कहीं पहुंचोगे 1 2 3 100, या नहीं भी पहुंचो तो ठीक है यार। मैंने एक बहुत चीज़ सीखी है लाइफ में, मेरे पापा से, जाकिर खान से, और किसी भी क्रिकेटर से बोल लो, हर इनिंग में 6 पड़ता नहीं, हर इनिंग में सेंचुरी बनती नहीं। 603 बार राहुल द्रविड़ जी ने बैटिंग करी इंडिया के लिए, उसमें 410 बार वो 50 के ऊपर का स्कोर नहीं बना पाए। माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में कम से कम 400 से 500 बार वो एक शॉट मिस किया जिसमें उनको ट्रस्ट किया था कि विनिंग शॉट ले लेंगे। और मेरे एक दोस्त ने 1000 ऑडिशंस दिए हैं आज तक, एक्टर है वो, सिर्फ 71 कन्वर्ट हुए हैं। 7% कन्वर्जन, 7 नहीं 0.7 हो गया, कितना हो गया? 1000 में से 70 तो 7% हो गया। 7% हो गया ना, सही बोल रहा हूँ। मैं होता हूँ सीखा, मैं बोलता छोड़ो यार, हो गया एक्टिंग का बस। सो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने लाइफ में नहीं पाई वो डील, नहीं मिली वो एड फिल्म, नहीं मिला वो सेंचुरी, नहीं मिली वो जॉब, तो जाकिर खान पापा और बाकी सब लोगों ने एक चीज़ बोली है कि भाई तजुर्बा तो मिला ना आपको, उसकी कीमत मूलांक पे नहीं आंक सकते आप। यू कांट जज एक्सपीरियंस इन मनी, but can experience pay you better money? Yes, right? Today if you are a 10-15-year-old in your field, tomorrow if you go as an app consultant to a startup or any company, you can charge a good price for an hour or for a project versus a novice. So let your experience keep building, whether you're in a job, freelancing, startup, sales, non-sales, whatever you're doing, because when I was speaking to this one amazing human being recently, you know what he told me? I asked Venkatesh, यार आपकी सबसे बेहतरीन इनिंग्स कौन सी थी? Coincidentally, we were traveling the same flight. वो इंदौर से, मैं भी इंदौर से, कनेक्शन बैठ के बातें हो गई। He said, तरुण, सबसे अच्छी इनिंग्स वो नहीं होती जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। सबसे अच्छी इनिंग्स वो होती है मेरे लिए, मैंने एक बार 2022 में MI के अगेंस्ट 8 बॉल में 21 रन बनाए थे। उसमें ना सारे शॉट बैट के बीच से पड़े थे। और वही मैंने एक बार 57 रन बनाए थे 43 बॉल में, टीम को जिताया भी था मैंने। यार एज लग के जा रही थी, ऐसे जा रही थी, वैसे जा रही थी, मैंने मज़ा ही नहीं आया आज खेल के। और थर्ड, इन सब के भी ऊपर सबसे अच्छी इनिंग्स उसने बोला वो होती है जिसमें टीम जीतने वाली साइड पे होती है। तो कभी भी अगर आप हार जाए लाइफ से ना, पर आपकी टीम जीत जाए तो जीती मानना उसको। अगर आपकी टीम में सबसे ऊपर आप ही हो और डील क्लोज ना हो तो तजुर्बे की जीत हुई, आपकी हार हुई, कोई बात नहीं। उसको अपनाना, सुनना, समझना, कहना बहुत आसान है। एक्सपीरियंस से ही आपको, तजुर्बे से ही आपको वो रियलाइज़ होगा ओवर द ईयर्स कि यार हर चीज़ कन्वर्ट नहीं होगी, हर बॉल पे 6 नहीं पड़ता, हर बास्केट में आप बॉल नहीं डाल सकते, हर गोल्फ का पट फर्स्ट टाइम में नहीं होता, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। और आई थिंक बस एक लास्ट चीज़ बोलूँगा आपको मैं इसके ऊपर, ये मैंने जो सीखा है, सुनील छेत्री ने भी यही बोला है, विराट कोहली ने भी यही बोला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी यही बोला है,
और आई थिंक अब तक आपको मालूम है कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत इंस्पिरेशन लगता है, मैं of स्पोर्ट्समैन रहा हूँ हर हम्म, लाइफ टाइम से। उन तीनों ने एक चीज बोली है, eat boring food, eat the same shit, do the same shit every day, whether you want to call it shit or beautiful, your choice. But when discipline beats motivation, then you become a CR7, then you become a Lata Mangeshkar, then you become a Sachin Tendulkar, then you become maybe you or maybe whoever you want to compare with. वैसे हमारी सोसाइटी में ना अनफॉर्चुनेटली ना रिजल्ट को हमेशा रिवॉर्ड दिया जाता है, एफर्ट्स को नहीं। सिखाया वो है ना, फर्स्ट आया तो अच्छा है, रेस में पार्ट लिया doesn't matter। कोई कीमत नहीं है उसकी। अब ना हालांकि आप जो एक्सपीरियंस सीखते हो, जो इंसान का माइंडसेट, जो जज्बा सेकंड आने वाले बंदे का होगा ना एक रेस में, वो फर्स्ट वाले का नहीं होगा, बिकॉज उसको पता है बेटर करना है। फर्स्ट वाले को बेटर करने की तो लालसा बची ही नहीं, क्योंकि वो तो कर चुका है। तो जो माइंडसेट किसका ज़्यादा स्ट्रांग होगा, किसका ग्रोइंग माइंडसेट होगा जो बंदा सेकंड आया है, थर्ड आया ना, जो थर्ड आया है, हाँ, है ना, उसको पता है कि उसको फर्स्ट पहुंचने का है आपकी पर, तो उनके अंदर वो जज्बा होगा करने का। एंड दीज आर द पीपल दैट यू शुड लर्न, ये मेरा मानना है। एंड एक और स्टोरी है इस पूरे सिनेरियो में ना, जो मैंने अपने रिसेंट एक पॉडकास्ट में बोली थी सचिन तेंदुलकर जी के बारे में, कि सचिन तेंदुलकर को पता है गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों बोला जाता है। अगर आप देखोगे तो सारी न्यूजीलैंड के सबसे बेहतर बॉलर कौन रहे हैं आज तक के? शोएब अख्तर, वसीम अकरम। न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड, हाँ शेन बॉन्ड रहा है, रिसेंटली रिटायर हो गए। हाँ, अब पाकिस्तान के कौन रहे हैं? वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये सब लोग। शोएब अख्तर। अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो मैकग्राथ रहा है, गिलस्पी रहे हैं, शेन बॉन्ड रहा है, करेक्ट। साउथ अफ्रीका के डोनाल्ड रहा है, करेक्ट, पोलाक रहे हैं, राइट। अगर आप देखोगे ना, सचिन तेंदुलकर वो समबडी जिसने अब तक की हिस्ट्री के सबसे प्राइम बॉलर्स को फेस किया है ऑल ओवर वर्ल्ड के, और उन्हें डोमिनेट किया है, इसलिए भगवान बोला जाता है उनके क्रिकेट का। अग्रीड। विराट कोहली ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट फिनिशर, ग्रेटेस्ट चेजर अभी तक का, क्योंकि उनकी सारी इनिंग्स अगर आप देखोगे ना, मोस्टली वो चेज करते टाइम जीते हैं, ही हैज ए डिफरेंट टाइटल, करेक्ट, पर भगवान नहीं बन सकते हैं वो, बिकॉज भगवान का टाइटल इसलिए दिया क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर टिल डेट इन द होल हिस्ट्री सचिन तेंदुलकर ने उन्हें खेला है और उनको नॉमिनेट किया है, करेक्ट। एंड यू नो शेन बॉन्ड ने बोला भी, मुझे नाइटमेयर्स आते थे, नाइटमेयर्स आते हैं, आके मुझे डाउन द ट्रैक आके मार रहा है। एंड आई थिंक इफ यू नोटिस ना, Sachin Tendulkar was not talented. It's only hard work, practice. टेनिस एल्बो लगा के इंसान खेले जा रहा है। इंसान को बोलता है आप रिटायर हो जाओ, बाल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। बट मुझे आज तक उनकी वो एक स्पीच में से एक लाइन याद है जिसमें वो बोलते हैं कि माई लाइफ हैज़ बीन दीज 22 yards एंड I'm thankful to each one of you, from my coach to my brother to my family to each one of you who's always come and cheered for me, and I will miss only one thing. Sachin. बिल्कुल। मतलब ये एक बात है, और दूसरी बात मैंने ये देखी थी यार, एक जो होता है ना ऑरा, मैंने ये कल एक पॉडकास्ट में सुना था, और वो सेम चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक सेल्स पर्सन होते हैं या फिर आप एक बिजनेस डील करते हैं, फिर एक बात करते हैं, तो आप एक ऑरा लेके आते हैं एक रूम में, एक एनर्जी लेके आते हैं एक रूम में। तो आपको पता होगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच चल रहा था, नवीन उल हक और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी कुछ हुई थी, कुछ तो झगड़ा हुआ था आईपीएल में, मुझे इतना याद नहीं है ना। अब सब नारा लगा रहे हैं, नारा में क्या बोल रहे हैं लोग, 40,000 लोग आपको ट्रोल करके, बुली करके सब बोल रहे हैं, बाप से मिला कैसा लगा, बाप से मिला कैसा लगा। विराट कोहली ने जब ये सुना, वो खेल रहे थे वहां पर, क्रीज पे थे, अब वो लोग बॉलिंग कर रहे थे, अपन बैटिंग कर रहे थे, इंडिया। ही डिड ओनली वन थिंग, यू नो व्हाट वाज दैट? अगले सेकंड 1 2 3 4 नवीन की जय का। एंड मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई? इतना इन्फ्लुएंस एक इंसान कैसे पा सकता है लाइफ में? 1-2 सेकंड में ऑडियंस ने पूरा चेंज कर दिया स्टेटमेंट, और हजारों लोग, 40,000 लोग को आपने मोटिवेट कर दिया 1 सेकंड में कि भाई। और उन्होंने ये सेम चीज करी थी जब स्मिथ को बुली किया था, उन्होंने बोला कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो, अपन ऐसे नहीं, अपन भारतीय लोग हैं, अपन माफ कर देते लोगों को, है ना। और आपको पता है, मुझे पता है कि विराट कोहली डेफिनेटली नवीन उल हक से बहुत उम्दा प्लेयर है, कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बॉलर है, वो बैट्समैन है, कोई कंपैरिजन नहीं है, टैलेंटेड एथलीट्स दोनों अलग अलग पे होंगे। तो अगर आप ये ऑरा क्रिएट कर सकते हैं ना एक रूम में
कि यार अगर आपने बोला, जैसे मैं आपको बोला था ना कि 3 टाइप के लोग थे जिन्होंने पिच की थी, एक ने बोला कि सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये होगा और यही कॉस्ट पे होगा सर, नहीं तो नहीं होगा सर, विथ हम्बलनेस एंड विथ नॉट ईगो। जहाँ पर आपका ईगो बात करेगा ना, आप बोलोगे यार इसका तो बहुत बिजनेस है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कभी नहीं दिखाना आपको एक पिच के अंदर। क्योंकि अगर आपने 1000 लाख करोड़ की भी सेल कर ली हो, स्टे हम्बल। ये मैंने राजकोट में एक बहुत अच्छे इंसान है जो श्रीनाथ जी डेकोर के ओनर हैं, पूरे इंडिया में वो एकमात्र स्टोर है जो नंबर 1 पे चलता है एक बहुत अच्छी ब्रांड के लिए। उन्होंने बोला बेटा इतने छोटे रूम से उन्होंने चालू किया होगा, अब उनकी 5-6 मंजिल की एक शोरूम है और 2-3 शोरूम्स और है राजकोट। पैन इंडिया सप्लाई करते हैं, फैब, फर्निशिंग, सोफा, सब कुछ। उन्होंने बोला बेटा अभी तो बस शुरू ही किया है। मैंने बोला सर अभी आपने सिर्फ शुरू ही किया है। हम्बलनेस, सिंपल सुबह बैठे थे मेरे साथ में, वो बोले बेटा क्या खाओगे, पहले कुछ खा लेते हैं, चाय कॉफ़ी पी लो, पोहा मंगा देते हैं, अब बाहर से आए हो सुबह सुबह फ्लाइट लेके, कोई बात नहीं। एंड उन्होंने मुझे एक और चीज़ सिखाई थी कि समझो यहाँ पर एक टीवी है। उन्होंने बोला टीवी का क्या कॉस्ट होगा आपके हिसाब से? सर पता नहीं, होगा 5-6-7 लाख। बोले बेटा ये टीवी 1 करोड़ रुपए का है। वो शो ऑफ नहीं करते, वो ये बता रहे थे बेटा कि करोड़ रुपए का डील भी आप क्लोज कर लो ना तो भी आपके लिए कम है, क्योंकि किसी के लिए करोड़ रुपए का तो टीवी मिल रहा है सिर्फ। तो वो ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ पैसे कमाओ, ऐसा बोल रहे थे कि अब पैसे ना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव और परसेप्शन वाले होते हैं। आपके लिए 1000 रुपए की टी शर्ट बहुत सस्ती है, मेरे लिए शायद वो बहुत महंगी हो जाएगी, राइट? आपके लिए लाख रुपए का जूता बहुत सस्ता है, मेरे लिए शायद महंगा है, या वैसे वर्सा। तो लॉजिक से इतना बोलता है कि अगर आपको पता है कि आपको यहाँ पहुँचना है, तो जब आप एक सेल कर रहे हैं या किसी से डील कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, प्लीज़ हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग वाई। बिकॉज आपको पता है कि इस डील के कन्वर्जन के बाद ना आप ये अचीव कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, एक नया ऑफिस स्पेस में घुस पाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना जब करने की ज़रूरत पड़े, जाने मत देना उसको जब आपने 6 महीने किसी में मेहनत करी हो। क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पिच फीस नहीं मिलती किसी को भी, प्रपोजल बनाने की फीस किसी को नहीं मिलती। सामने वाला रिसर्च फ्री में करो, ऊबर बनानी है, ठीक है रिसर्च फ्री में करो बस मेरे लिए, है ना, मुझे नहीं पता कैसे, बस तुम कर लो, मे बी आई हैव द मनी और डोंट हैव द मनी, दैट्स सेकेंडरी थिंग। सो व्हाट आई हैव लर्नड इज A, have an aura that nobody can beat. B, whether you're a salesperson or a normal individual, be power dressed. When you're power dressed, you feel confident 125%. Always. Don't wait for the perfect occasion to come. Just wear what you like and wear the new ones that are there in your wardrobe under, बचपन में संभाल के रखता था मैं, आज मैं सब पहन लेता हूँ मैं। Same. है ना? So, and third, like you said initially in the conversation, please understand प्रॉब्लम क्या है। मैं सॉल्यूशन लेके आऊँ सर आपके पास, सर आपको कैंट आरओ चाहिए, अरे मेरे घर पे तो नर्मदा का पानी आ रहा है शुद्ध, मेरी माँ ने आरओ लगाया नहीं इतने सालों में, अब उन्होंने कुछ सालों से लगा लिया है। हम नर्मदा का ही पानी पीते थे अंटिल सोसाइटी में टैंकर से पानी आने लग गया, उसको तो फिल्टर करना ही पड़ेगा, आपको पता है। उन्होंने रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश करी, प्रॉब्लम एस्टैब्लिश करी, उसको एजिटेट किया, बताया आपको ये प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम सच में होती है, कुछ मार्केटर्स बेच देते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स डाल के। बिल्कुल। अभी तक हमने पॉडकास्ट में ना माइंड ऑफ द बायर समझा, सेल्स टेक्निक और उनके बिहाइंड की साइकोलॉजी समझी, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, ह्यूमन बिहेवियर का कितना बड़ा इम्पैक्ट है व्हेन इट कम्स टू सेल्स। एक सेल्स पर्सन अगर एक ऑफिस में एंट्री कर रहा है तो उसकी किस टाइप की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए वाइल वॉकिंग। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, केस ले लेते हैं, लेट्स सपोज किसी को अपना ना मार्केटिंग प्लान पिच करना है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, सर्विस नहीं कुछ प्रोडक्ट है, सर्विस प्रोडक्ट है, हाँ प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज कोई टी शर्ट वाली कंपनी है, उसको जाके ना मार्केटिंग प्लान सेल आउट करने का है, तो व्हाट हैज़ टू बी द बॉडी लैंग्वेज एंड द ऑरा ऑफ द पर्सन। तो सर्विस ही हो गई, मार्केटिंग प्लान भेजना टी शर्ट कंपनी को। तो क्या ये लीड मेरे पास ऑलरेडी थी कि पहली बार कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? स्ट्रेंजर की तरह ले लेते हैं, मैं उन्हें रैंडमली पिच कर रहा हूँ। और डिफिकल्ट यार, स्ट्रेंजर की तरह तो पिचेस आजकल होती ही नहीं है, लोग भगा देते हैं, बट ठीक है। I will not say that I'm here to pitch. I will say that I'm just here to meet somebody from your marketing team or somebody from your leadership team. But sir, why should they give time to you? They're all occupied. I don't mind, I can wait.
they might get free at 2 o'clock, 3 o'clock, 4, 5, 6. So they're all occupied today. You can come tomorrow. So just 5 minutes if you can give me. Sorry sir, but let me check for you because मैं persistent हूँ, मैं try कर रहा हूँ. आज मिट दे दो. मैंने नहीं बोला मैं कुछ पिच करने आया हूँ और मैं आज पिच करके जाऊँगा भी नहीं. ओके, क्योंकि मैंने अगर आज पिच कर दिया तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से झूठ बोला, अंदर उस इंसान से जिसने मुझे अपने 5 कीमती मिनट दिए उससे भी झूठ बोल दिया. इमेजिन करते हैं 5 मिनट मुझे मिल गए. ठीक है. अब 5 मिनट टेक्निक में मैंने ये सोचा कि पहले मैं 5 मिनट तो ले लूँ, अगर इंटरेस्ट आएगा तो बंदा खुद ही बोलेगा बैठिए कंटिन्यू करते हैं बात. और जाने के पहले मैंने खुरेद दिया पूरा कंपनी के अंदर क्या मार्केटिंग हो रही है, कैसे बेटर कर सकते हैं. A to Z सब फिट है यहाँ पर. A to Z मुझे पता है क्या बेहतर कर सकते हैं वो लोग. तो मैंने बोला कि सर, और मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, हम्बल. मैं बस एक हम्बल, मैंने मेरा कार्ड भी दिया, उसमें लिखा भी है कि मार्केटिंग कंपनी है मेरी, सब लिखा है उस पर. और CEO के पास वो कार्ड जाता है या मार्केटिंग है उसका जाता है, वो लोग एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट भी करते हैं. बहुत बार ऐसा हुआ भी है. बुलाइए या फिर कल वल देखेंगे, है ना. तो कल वल कभी नहीं आता, ये बता देता हूँ मैं आपको. अगर तारीख और समय लेके निकल रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो कभी नहीं आएगा. होता ना ऐसा, दो दोस्त बोलते हैं मिलते हैं भाई, हाँ भाई मिलते हैं. कौन कब मिला पता नहीं, कोई सेट ही नहीं हुआ. हम मिले, हमने बात करी उनसे, CEO से या मार्केटिंग हेड से. हमने उन्हें 3 ऐसी बातें बताई जिनसे उनका बिजनेस में बढ़ोतरी होगी मार्केटिंग टेक्निक्स के थ्रू, जो लोग डेफिनेटली गलत कर रहे हैं फिर बेटर कर सकते हैं बाय अप्रिशिएटिंग व्हाट दे आर डूइंग फर्स्ट. जाके किसी के घर में घुस के उसको नकार देना कि यार ये कैसा बनाया है यार, कोई स्टूडियो है क्या, ऐसा नहीं बोल सकते आप. आपको एडवाइस देनी है ना, पहले अप्रिशिएट करो सामने वाले को. फीडबैक देने का तरीका होता है एक. फिर उसको 3-4 बातें दो और निकल जाओ. बोलेगा यार ये बंदा रैंडमली मेरे ऑफिस में आया, पागल कहीं का. मेरे 5 मिनट के लिए 4 घंटे इसने वेट किया, 3 बातें अच्छी बोल गया. भले मैं आपसे काम करूँ नहीं करूँ, आप मुझे कभी भूलेंगे नहीं. आपका कार्ड मेरा है और मैं अब आपको कॉल बैक भी नहीं करूँगा, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगा. हमने ना बॉडी लैंग्वेज की बात करी, टोनैलिटी की बात करी है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना किसी मीटिंग में बैठे हो, सेल्स कर रहे हो, एंड सामने वाले बंदे के ना कुछ माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमें ना समझने पड़ते हैं कि वेदर सामने वाला बंदा इज एक्चुअली इंटरेस्टेड और नॉट. वो कैसे समझ सकता है एक सेल्स पर्सन? वन इज़ वाया एक्सपीरियंस. आपने बार बार सेम तरीके से ठोकर खाई है तो आपको पता है पक्का डील कन्वर्ट नहीं हो रही भाई. कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कॉस्ट दे दो. और सेकंड, ऐसा लोग बोलते हैं कि वाइब मैच नहीं हो रही. वाइब इक्वल्स टू एनर्जी. If the energy was not matching between the person you're pitching to and you being the seller here, you try whatever you want. It will not happen. If it happens, it will break off very soon. Third, notice how they're reacting when you're presenting them something or talking to them about something. Are they showing you the same gleam in the eyes? Are they looking bored or tired? If they are, change your voice modulation. Or just do something which gets them attention back. This is how I take my audience's attention back. And I call the person by the name if you can in the conversation. See if they're going back to their phone, that means they're getting bored for sure. Or there's something more important and more urgent to attend. So tell them, I think sir, there's something which is like constantly coming on your phone or something, I don't know what, and I don't even intend to know what. But if it's more important than this meeting, we can reschedule, sir. Because like I requested, I will need at least 45 minutes with you. And I think in the last 15 minutes, 20 minutes, आप 2-3 बार थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए. तो डिस्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करें, प्यार से बोलते हैं उन्हें कि सर कभी कल परसों कर लेते हैं, जब आप बोले तब कर लेते हैं. I'm available, I'll make myself available for you because you really want to work with this person, but the person is not like that, but the person is right now occupied. Same thing happened with me in recent meeting. The person got 5 calls after the first 15 minutes and I told him, bhai, let's reschedule. And this was a meeting in a different country altogether. So he felt bad कि यार इतनी दूर से तरुण आया बॉम्बे से and I had to do this. And that's what a good human being is, right? Correct. He apologized once, twice, thrice. I said, यार कोई बात नहीं भाई. I saw that you were on a firefighting situation. Fourth, learn to have internal communication with your teammates. बहुत कम होता है कि आप अकेले पिच करने जाते हैं. हमारा एक कम्युनिकेशन था, मैं और मेरे कलीग का. मोस्टली ना एक टेबल होती है सामने, एक था टैप ऑन द शू, नज ऑन द नी
or somewhere, or say a word which is a code word which the person doesn't understand कि भाई यहाँ पर अब तेरे को पिच करना पड़ेगा, मैं भूल गया आगे क्या बोलना था, या फिर आई थिंक ये पिच सैड जा रही है, आगे कुछ इंटरवीन कर, या फिर बस तरुण इसके आगे नहीं बोलना है, बस फुल स्टॉप, पॉज. And more than expressions, I'll tell you one more thing. It's very important, fifth point, is to listen to the person. आपने एक आइडिया प्रेजेंट किया, सर हमारा आइडिया है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. ठीक है, that's what Tarun Speaks also does. जब ये कैंपेन पिच हुआ होगा ना, और टाटा टी का था, उनका था शायद, आई थिंक सो, तो मैंने बोला, एक्सप्लेन किया और मुझे पॉज देना है. यू विल आगे बढ़ के स्पीक. अगर आप नहीं बोलते सर आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक बिफोर आई मूव फॉरवर्ड. एक्सप्रेशन अगर नहीं दे रहा हूँ ना मैं, तो निकलवाओ ना मुझसे, इन्वॉल्व करो ना अपने कन्वर्सेशन में. बिकॉज अगर देखो आज अगर मैं बातें कर रहा था आपसे शुरू से लेकर अब तक, तो आप सिर्फ सुन रहे थे. आप सुन ज़्यादा रहे थे क्योंकि आपने मुझे किसी रीज़न से बुलाया है कि मेरे पास जो कुछ बातें हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ नॉलेज है जो मैं बता दूँ लोगों को. करेक्ट. पर आपने बीच में ऐड किया ना, अगर एक वन वे कम्युनिकेशन, तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, आप भी, मैं भी, सब, सारे रूम वाले लोग भी. When I'm involving you in a pitch, I'm making you a part of the pitch. One. Fifth. Sixth point is, if don't do the pitch the same way, laptop के बाहर निकलो आप. One brilliant MB students pitched me an idea for Domino's. They were given the brand Domino's. They got a pizza for every judge. Full room was smelling of pizza. I was sold before the idea came. Idea was good. I gave an honest feedback also, to be honest with you. But I was like, ये ऐसा कभी किया ही नहीं किसी बच्चे ने मेरे सामने. Interesting लगा मुझे idea. Become the brand and pitch. Wear those colors that the brand wears if you can. Pitch it on a whiteboard maybe. Do something different. Pitch it on a piece of paper if you're just two people and pitching each other. Involve me, like you said, and I might get excited by maybe the board thing or maybe a presentation, or I might also feel यार ये क्या board पे लिख रहा है आदमी, unprofessional है. But once you're done with the board, you tell, so the entire thing which I explained on the board is in the presentation. There you go, I've emailed it to you. मैंने इसके बारे में अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. देयर वाज ए क्लाइंट ऑफ माइन, इंडियन क्लाइंट था, बट ही मूव टू यूके, और उसको ना एक ऐप बनवाने का था. दैट वाज लाइक इंफॉर्मेशनल काइंड ऑफ ऐप. उन्होंने मेरे से बोला कि वासु, देयर इज सम रिसर्च दैट वी हैव डन according to the requirement, whether it is required in the market right now or not, and they did it, and they did a fantastically good job. तो वो लोग मेरे पास आए, एंड उनके पास ना मेरे से पहले IITians वगैरह ने, सब कई लोगों ने पिच कर रखा था, 6-7 लोगों ने पिच कर रखा था. एंड देन somebody came to me, वासु you have to be totally extraordinary if you want to win this thing. और जो बंदा डिसीजन मेकर था उसका बेटा मेरा दोस्त है. तो he said कि वासु, my job is to put you into the room, not to close the deal. Absolutely right. So it is up to you now. And अब मुझे पता था कि these people are like South Indian people. तो मैं गया अंदर, and the information जो भी exchange start हुई ना, then I presented the whole conversation in a way जैसे South Indian meal होता है. इडली भी है, डोसा भी है, वैसा है ना, उसमें सांभर भी है. And all the topics that I covered, no, all the एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए वो हमेशा ना इडली, डोसा, वड़ा, इस सब के, उपमा वगैरह के आसपास के थे. एंड दैट गाय गॉट सो इम्प्रेस्ड कि आई टच्ड हिज पर्सनल इमोशनल नोड ऑल्सो, बिकॉज उस बंदे को बहुत अच्छा लगता था अपनी माँ के हाथ की इडली खाया, जो कि उसको सालों हो गए. एंड ही लव्ड द आइडिया. दिल को लग गई बात. मैंने अभी तक अभी कोटेशन भी, क्या मैं उनको चार्ज करने वाला हूँ इसको, वो मैंने कुछ भी रिवील नहीं किया अभी तक. And he loved it. He said कि वासु, I'm going to go with you. उसके बाद हालांकि मैंने बताया कि अंकल, that I know your son also, and that was a different story. but तब तक मैंने उन्हें बताया भी नहीं था कि I come through your personal connect only. तो of course जब आप सेल करने जा रहे होते तो it is not only about what you want to sell. It is more about when you are touching those nerves which are making them to say yes to whatever you are selling to them. So आप उन्हें उस जोन में
हाँ बोलने वाले जोन में कैसे लेके जाते हो। हर किसी क्लाइंट का ऑफ कोर्स अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, वो किस चीज़ को लेके, हम बहुत सारे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो उनकी कन्वर्सेशन में आपको ना दिखाई दे जाता है। जब आप इमोशनल कन्वर्सेशन उनसे करते हो तो दे वांट टू स्टिक टू द फैक्ट्स, वो हमेशा नंबर्स पे आ जाते हैं, विच मीन दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड ओनली विद द नंबर गेम्स। कुछ लोग हैं जो इमोशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ वो फैमिली वर्ड 3-4 बार यूज़ कर गया वो इंसान, देन आई कुड अंडरस्टैंड कि यार ये फैमिली के साथ थोड़े अटैच्ड हैं, तो आई कैन प्ले विद दैट फैमिली वाला वर्ड विद देम। लोग बाग ना बहुत सारा अलग अलग दुनिया भर के टेक्निक अपना लेते हैं, बहुत सारी सेल्स टेक्निक यूज़ कर ली हैं लोगों ने। अगर फिर भी रिजेक्शन होता है और ना कंटिन्यूस रिजेक्शन है, तो एक सेल्स पर्सन ना एक कंटिन्यूस रिजेक्शन को ना कैसे हैंडल करे, और उसके बाद भी उस क्लाइंट को वापस से जाके जो पिच करना है ना, उस माइंडसेट के साथ कैसे जा सकता है? Do you know who's the person who's failed the most in this whole world? Anybody you know? Any personality that it comes to your mind? Any human being? Could be your friend, sports person, normal entrepreneur, anybody. Anybody who has win the race, they failed for the most time. Okay. बहुत बार गिर के सीखे होंगे। हाँ। ठीक है। जैसे आपने बोला कि मैंने 100 दरवाजे खटखटाए और सब पे यार मुझे बोला कि मुझे नहीं चाहिए इंसाइक्लोपीडिया, मुझे नहीं चाहिए आपका स्किन केयर, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रपोजल, मुझे नहीं चाहिए आपकी एजेंसी। सबसे पहले तो आपको एक एक्सेल शीट पे क्लाइंट बाय क्लाइंट एनालिसिस लिखना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए था उन्हें? पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, प्रपोजल का बताने का तरीका अच्छा नहीं था मेरा एजेंसी में, या फिर हमारे पास वो आइडियाज़ अच्छे नहीं थे, या फिर हमारा कॉस्ट बहुत हाई था या लो था उनके हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से। जब आप वो एनालाइज करेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा आप कहाँ पर फॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोहराते जा रहे हैं, आप रिकॉर्ड तो कर नहीं रहे कॉन्वर्सेशन। मैंने कुछ मीटिंग्स में रिकॉर्ड की है कॉन्वर्सेशन मेरी, सुनता था मैं आके ऑफिस में क्या बोल रहा था, कब चुप होना था, कब सुनना था, कब नहीं सुनना था, कब बोल देना था, कब रुकना था। तो एनालाइज करें कि आप फेल हो क्यों रहे हैं, बिकॉज वॉट गेट्स मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर आपको पता है कि आज आप बॉलिंग फेंक रहे हैं जसप्रीत बुमराह 140 किलोमीटर पर आवर से, आपको पता ही नहीं कितनी स्पीड से आ रही है, आपको लग रहा है फास्ट तेज आ रही है, बस तेज है, सही चल रही है, सही चलने दो। ऐसा थोड़ी होता है यार। मेजर करोगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन सी बॉल कितनी स्पीड से जानी चाहिए थी। सिमिलरली कौन सी पिच क्यों नहीं सही गई, वो इंसान ने इंसाइक्लोपीडिया क्यों खरीदा। आप ऐसे मोहल्ले में जाके बेच रहे थे जिनकी महीने की फैमिली इनकम 50,000 रुपये, वो क्या 5,000 की इंसाइक्लोपीडिया खरीदेगा आपकी? तो आप टीजी गलत में चले गए। एनालाइज द रीज़न, एंड उसके बावजूद एनालिसिस करने के बावजूद भी अगर डिजेक्टेड फील हो, तो ये बात समझ लेना कि लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल और सबसे कठिन, सबसे डिफिकल्ट, सबसे चैलेंजिंग जॉब होती है सेल्स। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मार्केटिंग इज चैलेंजिंग, बिकमिंग अ डॉक्टर इज चैलेंजिंग, फाइनेंस इज चैलेंजिंग, स्पोर्ट्स इज चैलेंजिंग। आई थिंक सेल्स इज द मोस्ट चैलेंजिंग। अगर आप नोटिस करना, हर कंपनी में ना सेल्स वाला बंदा ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तीसरा, उस बंदे को खुद वो थक जाता है। अब उस इंसान से पूछो जो जाके अंधेरी स्टेशन वेस्ट के मेट्रो स्टेशन पे मेरे को आके 100 बार पूछ चुका है, सर क्रेडिट कार्ड लेंगे, सर ये बेनिफिट्स हैं, सर मूवी टिकट फ्री है, सर ये फ्री है, ये फ्री। उसको पता है कि इतने बिकेंगे तो सैलरी मिलेगी, इतने ज़्यादा बिकेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा। एंड सेल्स इज नथिंग बट CSC, right? Convincing with storytelling and confidence. I've thought so many times कि अगर वो सेम बंदा एक बोर्ड लेके खड़ा हो जाए, सिर्फ कुछ ना बोले, ठीक है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, सर आपको चाहिए या ना चाहिए, अगर आप लेते हैं तो आपको ये 3 फायदे होंगे। He said 0। और आपको पता है कि मैं जो मेरी बात सुन नहीं रहा वो पढ़ तो लेगा, पढ़ नहीं रहा तो ठीक है, मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, मैं उसके एग्ज़िट पे, जैसे ही एग्ज़िट होता है ना वो स्टेशन से, एक ऑडियो प्ले करता हूँ। अगर आप SBI से पेमेंट करते, हाइपोथेटिकली SBI यूज़ कर रहा हूँ, कैंसिल कर देते हैं। अगर आप ABC बैंक का कार्ड यूज़ करते तो आप अपनी मेट्रो टिकट पे 5% पैसे बचा सकते थे। क्रेडिट कार्ड इज़ अ ग्रेट थिंग एंड नॉट अ ग्रेट थिंग इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। सिमिलरली अगर मैं वो करके बेचता तो शायद मेरा कार्ड बिक जाता, वजह है कि सर लेंगे, आई एम लुकिंग डेस्परेट। कमिंग बैक टू द पॉइंट यू आस्क्ड, फिर भी क्रेडिट कार्ड नहीं बिकता ना उसका, बहुत कोशिश करता है, 100 में से 2-3 लोग ले लेते हैं।
तो आपका इंटरनल ड्राइव क्या है ये चीज़ को बेचने का, हाँ। और उससे जो पैसे कमा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर आपको पता है कि कल आप उठ के ऑफिस नहीं गए तो अगले महीने जो आपको अपने बच्चे को साइकिल लेके देनी है हाँ। वो नहीं आएगी, तो क्या आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। इसलिए जैसे आप ना कुछ लोग फिर इमोशन हटा देते हैं सेल्स में से। यार बहुत बार सख्त हुए पर यहाँ मैं पिघल गया, वही बात है ना जाकर हाँ। कभी कभार कस्टमर कन्वर्ट होता है, और ऐसा नहीं है कि यार 100 में से 100 रिजेक्शन मिल जाते हैं, लोग मिलते भी होंगे, चलो 1000 में से हाँ। 1000 मिल जाते होंगे। हाँ। मेरे दोस्त ने 1000 इंटरव्यूज में अप्लाई किया था इन यूएसए टू गेट 1 इन अडोबी। 6 राउंड हुए थे, बहुत मुश्किल से मिलता है अडोबी में अकॉर्डिंग टू हिम। बट डिड ही परसिस्ट और डिड ही गिव अप। अगर आपको पता है कि मेरा लक्ष्य ये है तो आपको पाना ही है, और आपको उसके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल सकता है, पोस्टर्स लगा दो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छे स्पीचेस सुनो, सेल्स टेक्निक थोड़ी चेंज करके देखो। जैसे मैंने आपको बोला अलग अलग तरीके से करो ना सेल्स, सेम तरीके से मत करो, बोल्ड के करो, बोल के करो। जब आप चेंजेस करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि एनालिसिस में ये इतना वर्क कर रहा है, ये इतना वर्क कर रहा है, ये इतना वर्क कर रहा है। फिर आपको रिजेक्शन से डर नहीं लगेगा, आपको रिजेक्शन से दोस्ती हो जाएगी। ठीक है यार 100 पिच मारे थे वासु भाई आज, इसलिए तो कोल्ड आउटरीच करते हैं ना लोग। 100 लोगों का आउटरीच किया था, आसू भाई 5 ने रिप्लाई किया, एक से मीटिंग कन्वर्ट हुआ तो बढ़िया, कल उठ के यही करना है। इस पूरे सिनेरियो में ना मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि रिजेक्शन आई थिंक इज बेटर देन एक्सेप्टेंस। मेरे हिसाब से रीज़न इसका ये है कि जब आप रिजेक्ट होते हो ना तो आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है तो दुनिया बता देगी आपको, क्या नहीं करना है इट विल कम विद दैट एक्सपीरियंस जो आपने बार बार रिजेक्ट होके ना प्राप्त किया है। ट्रू। और दैट विल एक्चुअली टेल यू कि हाउ बेटर योर नेक्स्ट सेल्स कन्वर्सेशन विद द सामने वाला प्रोस्पेक्ट इज गोइंग टू बी। तब आपके हाथ में एक पावर होगी कि भाई ये चीज़ तो मेरे को नहीं करनी बिकॉज इससे तो रिजेक्शन होना है। यू विल बी बेटर नेक्स्ट डे। करेक्ट। एक्सेप्टेंस के बाद तो आप कहना वो बेटर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं बिकॉज यू फील कि आई यू आर समवेयर ऑलरेडी। करेक्ट। सो और कंटिन्यूस ग्रोथ कभी आती है इंसान को जब आप ना डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। ट्रू। और जैसे वो कहते हैं ना कि पीपल डू नॉट बाय व्हाट यू आर सेलिंग, पीपल एक्चुअली बाय व्हाई आर यू सेलिंग इट। जो आपका एजेंडा है दैट इमोशंस ऑफ कोर्स, जैसा उन्होंने बताया कि भैया मेरे को पता है मेरा बच्चे को ना नेक्स्ट मंथ मेरे को साइकिल लेके देनी है, एंड व्हेन सामने वाला बंदा कनेक्ट टू इट नो कि यार ही हैज़ बेटर कॉज टू डू दिस जॉब, तो वो लोग समझते हैं कि और कहीं ना पर्सनली कनेक्ट कर लेते हैं बिकॉज मैं क्यों कर रहा हूँ कोई काम, ये भी वही काम कर रहा है। तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट समबडी और उसके वो आप इंस्पायर भी होते हो। मैं एक एग्जांपल दूंगा इस जगह। देयर वाज दिस गाय जो कि टिपिकल सेल्स वाला क्वेश्चन नहीं होता जो एचआर पूछता है, सेल मी दिस पेन। हाँ अच्छा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सबसे फेमस वो वाला इंटरव्यू का क्वेश्चन है, राइट। तो देयर वाज दिस गाय, आई वाज आस्किंग यू, वो ना पेन दे रहा था, तो ना मैं उस टाइम पे दुनिया भर की मूवीज देखता था, तो मेरे को लगता कि यार कुछ ना कुछ तो सीख लेंगे अपन ना। तो मैंने ऐसे नॉर्मल पूछा भाई क्यों बेच रहा है पेन, तो उसने ना मेरे को ये नहीं बताया कि पेन की खूबियाँ बताने लग जाए फलाना टाइम करना, कुछ भी ना, नथिंग। ही केम टू मी कि भैया पेन बेचूंगा ना तो घर में रोटी आएगी, शाम का ना खाना तब लेके जाऊंगा अपने बच्चे के लिए। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं इधर के, 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। अब क्या है कि अब मेरे को ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा पेन कितने का है, अच्छा है कि बुरा है कि नहीं है। एज ए कस्टमर खरीद लिया आपने, मेरे को लग रहा है कि यार अगर मैंने नहीं खरीदा तो मेरे को ना वो गिल्ट आने लग जाएगा कि यार तेरी वजह से ना उसके घर में ना उसके बच्चे के लिए चॉकलेट नहीं ले जा पाया वो। इसीलिए आपको पता है सबसे बेस्ट सेल्समैन कौन है? जो आपसे आके भीख मांगते हैं। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो इंसान के पास अगर 2 पाँव 2 हाथ और आँख और नाक सब कुछ है तो कुछ तो कर सकता है। बहुत सारे लोग तो बिना उसके भी कर रहे हैं। श्रीकांत जी को देख ही लिया आपने, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ना मैंने उस इमोशन में आके गिव अप करना बंद कर दिया। मैं उसको कुछ भी बिस्किट दूंगा, चॉकलेट दूंगा, उसको वैल्यू ही नहीं है। अरे भैया क्या बिस्किट दे रहे हैं, अरे भाई आई एम गिविंग यू समथिंग, यू वांट, यू आर आस्किंग फॉर फूड राइट। भैया 10 रुपये का दे रहे हो, ऐसा हुआ है बॉम्बे सिग्नल पे, 10 रुपये का दे रहे हो। आई डोंट बिलीव इन गिविंग कैश, एंड इन इंदौर इसलिए रूल इज अप्लाइड, इफ यू गिव अ बेगर मनी यू विल बी फाइंड। यू विल बी फाइंड। ट्राई करके देख लो आप इंदौर जाके। There is a beggar in Bombay. He has how many flats? 6 on rent. Yes, 6 on rent. He's richer than all of us in the room. Why am I telling you this is because
they only play with your psychology and emotions. They probably are not the best salesman. That we'll have to correct that because वो गलत टेक्निक है यार. मैं आपको इमोशनल करके बेच रहा हूँ. सर घर में कुछ नहीं आएगा सर, प्लीज सर हमारा प्रपोजल ले लीजिए सर, सर कल को ये हो जाएगा. आप डेस्परेट होके कभी बेचेंगे ना तो आप उतना ही बेच पाएंगे जितना उसको एक बार खैरियत में नहीं चाहिए हमको. करेक्ट. ठीक है, हम बोल के आएंगे हमको ये चाहिए, हम डिजर्व करते हैं, आपको देना है ठीक, नहीं तो कहीं और से लेंगे. आपके जेब में 1 रुपया हो, आपको जरूरत लाख की हो ना, एटीट्यूड सेम रखना. बिल्कुल. Because nobody can judge what is there in your pocket. But the moment I know, Vasu is desperate for this app. Vasu quoted 10 lakh rupees for the development. Vasu 2 लाख में कर दे. सर 80% डिस्काउंट देख ले, दे रहा हूँ मौका. सर मैंने तो 800-900 बना दी. देख ले, मतलब देख ले यार, हमको तो जरूरत नहीं है, मतलब तेरे को है तो तू देख ले यार, हमको तो नहीं है भाई, तेरे ऊपर छोड़ता हूँ मैं. तो तरुण, आई थिंक ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसमें हम लोगों ने समझा है कि एक बायर का माइंडसेट क्या होता है, सेल्स पर्सन की बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्लस जो सेल्स टेक्निक है ना उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है. आई थिंक हालांकि सेल्स इज़ लाइक एन ओशियन, जिसके अंदर ना आप लोग कितना घुसते चले जाएं वो ख़त्म ही नहीं होगा. फ्यूचर में अगर हमें मौका मिला तो मैं कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपके साथ ना डिस्कशन करना चाहूँगा, जैसे कि सेल्स पर्सन का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जब हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो ह्यूमन बिहेवियर रीडिंग, सामने वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज को कैसे रीड किया जाए. प्लस आज की डेट में आपको पता है कि जैसे AI आ गया है ना, सारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, तो सेल्स पर्सन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ रहे हैं. राइट. उन सब से कैसे ओवरकम किया जाए. एंड आई बिलीव कि हम लोग फ्यूचर में ना इन 2-3 टॉपिक के ऊपर ना एक स्पेसिफिक ना पॉडकास्ट ना एक टॉपिक के ऊपर करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को ना इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए. कोई एक पर्टिकुलर सजेशन जो आजकल के यंग बच्चे हैं जिनको सेल्स में अपना करियर बनाने का है, तो आप उनके लिए कोई 2 शब्द बोलना चाहें. Firstly, I just want to say a big thank you to you for having me here. It was a pleasure to talk to you around everything that we have around sales. Like you said, it's an ocean. We'll talk in the ocean's depth as well. दो शब्द अगर मैं बोलूँ जिसको भी आज सेल्स करनी है उसके लिए, 2 शब्द आखिरी में बोलूँगा. पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा उसको, अगर आपने ये देखी है ना कहीं पर तो ये पोयम ज़रूर देखना, ऋतिक रोशन की, डर से मत डर. 6 उंगली वाला कभी अभिनेता बन पाएगा, ये तुझे डर सिखाएगा. तो गिरेगा तो उठेगा, तुझे फिर गिराया जाएगा, तू कभी फिर से डांस नहीं कर सकता, तुझे डॉक्टर बोलेगा, और तेरा डर तुझे सिखाएगा कि तू नहीं कर सकता. तू सिर्फ एक एक्शन स्टार रह सकता है, तू कॉमेडी या फिर तू इमोशनल सीन्स नहीं कर पाएगा, तुझे डर ये सिखाएगा. तुझे दुनिया ये सिखाएगी कि तू बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तू डर से डर जाएगा तो तू नहीं कर पाएगा. इसलिए डर से मत डर, उसका सामना कर, निडर बन और आगे बढ़. और वो 2 शब्द जो आखिरी आपने बोले वो कैसे हैं, वो सिर्फ 2 ही शब्द बोलूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि आपने 2 शब्द बोले. गिरो, उठो, और रिपीट करते रहो इसको. अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. Pleasure is all mine. Thank you so much.